100 سال کہہ لے، حالانکہ 63 سال سے زیادہ ایج نہیں ہے کسی بھی امام کی ظاہری. جی سب سے زیادہ رسول العظم مولا امیر علیہ السلام کی سیم اور امام صادق علیہ السلام، اس جزاک کے اللہ. بعد کوئی نہیں ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ بڑی غور سے میسن بھائی سوال آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی بسم اللہ. کہ یہ 11 ائمہ نے اپنی زندگی گزاری، 50 سال کہہ لے، 63 سال کہہ لے، 100 سال کہہ لے، 200 سال کہہ لے، ایک امام کی. کوئی جھوٹ سے جھوٹ بھی بولے گا تو 200 سال یا 400 سال ہی کہہ دے گا نا. جی تو اگر ہر امام نے ایک اپنا وقت گزارا، ظاہری دنیا سے پردہ کیا، تو 12 اماموں کے بعد جو 12 مہدی آئیں گے، یہ بھی تو اماموں کی طرح انہی کی سنت پر چل کے، اگر ایک امام نے ظاہری 100 سال ایج پائی ہے یا 200 سال پائی ہے، تو بعد میں جو 12 مہدی آئیں گے وہ بھی تو اسی ہی طرح دنیا میں 100-200 سال زندگی گزاریں گے نا. کرنا تو چاہیے ایسے. جی اب حدیثیں تو کہہ رہی ہیں کہ قیامت تک یہ جو 12 جانشین رسول اللہ کے بعد، یہ قیامت تک ذریت حسین سے جو باقی 11 ائمہ ہوں گے وہ قیامت تک چلیں گے، وہ امام ہوں گے. ایسا ہی. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر 11 اماموں نے ظاہری دنیا میں اپنا ایک وقت پایا اور وہ زیادہ سے زیادہ 63 سال ہے مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس جی سے زیادہ کسی امام نے ظاہری زندگی نہیں پائی قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ. جی تو 12 مہدیوں کا جو سلسلہ ہے، اگر یہ امامت کے بعد شروع ہوتا ہے تو یہ قیامت تک 12 اماموں کا سلسلہ نہیں چل سکا، تو 12 مہدیوں کا کیسا چلے گا؟ یہ میرا سوال ہے. بسم اللہ. اللہ اکبر. بہت اعلیٰ. اللہ اکبر. یہ تو سیدھا تھپڑ ہے ان کے منہ پر، اس کا جواب یہ ان کے پاس نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ نظام بنائیں گے تو پھر ان کو احمد الحسن الیمانی کے بعد جو انہوں نے بنا رکھا ہے تو باقی کہاں ہیں؟ اگر وہ چلا گیا ہے تو باقی کہاں ہے؟ یہ تو سیدھا نظام. ویسے تو ہمیں سیدھا پتہ تھا کہ نظام ان کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن یہ دلیل ان کے پاس قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے انہیں نام دینے پڑیں گے، اور نام ان کے پاس ہے نہیں، اور وہ مدت بھی نہیں ہے. ابھی جو ان کے پاس جو ہے، کچھ کہتے ہیں مر گیا، کچھ کہتے ہیں کہ ٹیلی گرام پہ میسیجز آتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے. اگر وہ یعنی یمانی ہے تو متحرک کیوں نہیں ہے؟ جی اور سب دوسری سے پہلا تو ظلم یہ ہے کہ 1200 سال کے بعد پہلا یمانی اور پہلا مہدی جو ہے دنیا میں ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے 1200 سال کے گیپ میں جو مومنین گزرے ہیں ان کے ساتھ تو سب سے بڑا یہ ظلم ہے، یہ عدل کوئی ہے ایک ہی نہیں. مہدی بھی نہیں آیا، کوئی ان ایک کو مہدی ہدایت نہیں کرنے کے آیا، لیے کوئی مہدی نہیں آیا. کوئی 1200 سال مہدی کے نہیں بعد آیا. پہلا مہدی آ رہا ہے. اور وصیت تو چل رہی تھی، جی وصیت تو موجود تھی. بالکل. چلے تو یمانی یہ نہ آتا، اس سے پہلے والا کوئی آ جاتا. یہی سوال ہے نا، کوئی بھی ہو جی یہ خالی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ عرصہ. پھر یہ تو جبر ہو گیا، اور جی فطرت ہے نہیں امام میں. ایسے ہی امام ہے، میں فطرت نہیں ہے. اور امامت بھی یہ ہوتی ہی حدیث نہیں ہے بے ثابت. شک. نہیں ہے. جی واہ امام میں بہت فطرت اعلیٰ. نہیں ہے. تو پھر اگر فطرت نہیں ہے تو پھر یہ جو 1200 سال کا بندہ جو ضمن کٹ رہا ہے، جس کو ہم چلیں اپنی زبان میں کہہ لیتے ہیں کہ ایک طویل مدت گزر گئی ہے، اور اس میں لوگ انتظار میں مر رہے ہیں، اور ہادی ہے نہیں، اور مہدیون نے آنا تھا، یا مہدیون اب آ گئے ان میں سے 1200 سال بعد ایک. تو پھر وہ جو 1200 سال میں سے جو لوگ مرے، جن کی خط و کتابت نہیں تھی، جن کے پاس فقہی مسائل نہیں تھے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ وہ تو پھر جاہلیت کی موت مرے. جی ہاں بالکل. اور میسن بھائی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لے کے آتے ہیں صرف ایک علامت کو، یمانی کی ایک علامت کو پیش کرتے ہیں، اور باقی ساری علامات انہوں نے اس طرح تروڑ مروڑ دی ہیں کہ ان کا بالکل رخ ہی تبدیل کر دیا ہے. یعنی اس کی ایک واضح علامت ہے کہ وہ یمن سے خروج کرے گا. انہوں نے کہا نہیں، وہ یمن سے مراد یمن نہیں ہے، وہ یمن والا ہم یمن استعمال کرتے ہیں. بھائی سفیانی کا پوچھے سفیانی کا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، سفیانی کا ظہور بھی اس کا خروج بھی ہو چکا ہے. ہدایت کا پرچم، یعنی علامات یمانی میں سے صرف ایک علامت کو پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ وصیت بھی جو کتب میں موجود ہے ہمارے پاس نہیں ہے، دیکھیں وہ کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، اور سید کو بھی معلوم ہے، اور دوسرے احباب جن کو نہیں پتہ ان کے لیے بھی یہ بات واضح کر دی جائے کہ ان لوگوں نے بڑا جدال کیا ہے، بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں ان کے عراق میں گورنمنٹ کے ساتھ. تو اب حدیث جو میں نے سید آپ کو سید ابن طاؤس کی وہ جو باب فتن سے، ملاحم اور فتن سے روایت ہے،
تو اس میں روایت ہے کہ قبل القائم علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی خروج کرے گا حتیٰ کہ من اولاد سیدہ سلام اللہ علیہ ہوگا، امیر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ ملعون ہے اور میں اس سے بری ہوں۔ اس کے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ورک کیا تھا نا مسلم بھائی، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنا کے لگائی ہوئی ہیں، شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہوں۔ میں نے شاید نہیں دیکھی۔ اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا تاکہ مومن کے ساتھ خیانت نہ ہو۔ جو احادیث ائمہ کی موجود ہے نا، جیسی احادیث ہیں ویسی مومن تک پہنچے، تو اس کو میں نے 2 حصوں میں اس طرح تقسیم کیا ہے کہ امام کی ابھی جو حدیث آپ نے بیان کی ہے نا، ایک تو یہ حدیث ہے، دوسرا اس کے علاوہ امام نے کچھ اور احادیث بیان کی ہیں جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو خاندان میں اپنی اولاد کو مخاطب کیا ہے، دوسرا اپنے اصحاب کو۔ اصحاب میں ابو بصیر ہے جو کمال الدین و تمام النعمہ کی روایت ہے، میں وہ بھی سناؤں گا، پہلے اولاد والی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ آخر زمانے میں قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے اس زمین پر قائم ہوگی۔ اس سے پہلے جو شخص بھی ہمارے خاندان میں سے اس حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کبھی بھی قائم نہیں کر پائے گا۔ دوسری حدیث امام فرماتے ہیں کہ جو بھی قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے ہم میں سے خروج کرے گا تو اس کی مثال ایک گھونسلے میں ایک پرندے کے بچے کی سی ہے جو گھونسلے سے نیچے گر جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اس پرندے کے بچے کو اٹھا کے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ابو بصیر کے لیے، یعنی یہ پہلے اپنے خاندان کے لیے، پھر امام فرماتے ہیں اپنے اصحاب کے لیے، ابو بصیر کے لیے، کہ اگر تم لوگ اس انتظار میں ہو کہ وہ حکومت قائم ہو اور ہم اس میں عیاشی کریں تو یہ دماغ بات سے نکال دو۔ اب تیسرا حصہ جو ابھی آپ نے بیان کی کہ وہ دین سے ہی نکل جائے گا جو خروج کرے گا۔ اب ان ساری احادیث کو بیان کرنے کے بعد مسلم بھائی پھر میں نے 5 مشہور واقعات کو لے کے آیا ہوں کہ اگر امام معصوم فرما رہے ہیں کہ ایک طرف یہ حکم ہے اور ایک طرف فرماتے ہیں کہ یمانی کا خروج جو ہے وہ حتمی ہے، شعیب بن صالح کا خروج حتمی ہے کہ وہ بھی خروج کرے گا، اس کے علاوہ حسنی سید ہے، اور اگر ہر خروج کرنے والا باطل ہے تو پھر یمانی کا خروج جائز کیوں ہو گیا ہے؟ یہ میں 2 حصوں میں تقسیم کیا اس کو۔ تو اس پر جو آخری بات تھی نا وہ میں نے یہ کی تھی کہ جس کو امام نے مینشن کر دیا ہے، جس کو حق دے دیا ہے خروج کا، اس کے علاوہ جو کرے گا وہ باطل ہے۔ یہ مختصراً اس تمام جو ویڈیوز ان تمام احادیث کو جمع کرنے کا رزلٹ تھا، وہ یہ تھا۔ جی بسم اللہ۔ یہ بالکل یہی سچی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سید ان کے پاس وہی ہے، صرف ایک ہی کہانی ہے کہ بھائی ہمارے پاس وہ بچپن میں ہم نے سن رکھی تھی مثال کے کھڈے والا خط ہے اور وہی پڑھنا آتا ہے ہمیں، اور کوئی نہیں آتا۔ وصیت وصیت وصیت، ٹھیک ہے بھائی ہے تو پھر لے آؤ اس خط کو، اس وصیت کو جو مولا کے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ آج تو جدید دور ہے، کسی بھی لیبارٹری میں جا کے چیک ہو جائے گا کہ یہ خط جو ہے وہ 1400 سال پرانا ہے اور مولا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ جی اتنے میوزیمز میں مولا کی تحریر کے لکھے ہوئے خطوط، رسائل اور قرآن کے نسخے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی وصیت کہیں نہ کہیں تو ملنی چاہیے تھی۔ بھائی خدا کی قسم ان کی خیانت کی خدا معاف کرے، اتنے بڑے یہ لوگ خائن ہیں۔ ایک پوری تفصیل ہے اصول کافی کی 2 جلد کے اندر کہ ایک امام کے پاس کون کون سی چیزیں اس کی امامت پر دلیل ہوتی ہیں، پورا چیپٹر۔ میں اس میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ، رسول اللہ کی ایک زرہ ہے، جو ایک امام اپنے جسم پر اس کو مس کرتا ہے یا ٹچ کرتا ہے تو وہ پورا اس کے سائز کی ہو جاتی ہے، اور قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ کی وہ زرہ جب پہنیں گے تو وہ زرہ ان کو پوری آ جائے گی۔ اب یہ زرہ، وہ زرہ یہ سامنے لے کے تو آئے نا، یہ دکھائیں وہ زرہ کہاں ہے۔ وہ پورے تبرکات الگ ہیں
और वो जो क्या कहते हैं उसको, दो हिस्सों में तबरकात है, एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़ाती तबरकात और एक दीगर अंबिया के तबरकात। अंबिया के तबरकात में से इमाम फरमाते हैं कि हजरत दो कमीज़ें हैं, एक कमीज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और एक कमीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कमीज़ का कमाल यह है कि आग भी उस पर असर नहीं करती, मिसम भाई। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज का कमाल यह है अल्लाह अकबर। कि बेटा मिस्र में हो, बाप कनान में हो, तो उसकी खुशबू आ जाती है। बिल्कुल, और बसारत दे देती है। तो इनसे कहो कहाँ है वो, लेके आओ, हम ज्यादा चीजें नहीं मांगते, ये दो चीजें तो लेके आ जाओ। सुभान अल्लाह। सैयद मैं तो कहूँगा ये ना जीरा की जगह जीरा लाएंगे और मिस्टर भाई आप फिर खाने पीने की बात है। जी खाना आएगा माशाल्लाह, सलामत है। ये जीरा की जगह जीरा लेके आ जाएंगे, और वो भी काला। हाँ जी, अल्लाह अकबर, खुदा हिदायत बस दे। कुछ नहीं है, अगर होता तो ये लेके आते। देखें इतनी दुनिया बैठी हुई है, खाली कोई झक तो नहीं मार रही ना। अगर दलील होती तो ये सबसे पहले अहले इराक वालों को अपना जो है ना वो मुत्तबा करते। अभी तक तो परचम की उसने आप लोगों के सामने इसने परचम की बात की है ना, आले मोहम्मद की कसम में 12 हदीसों से ज्यादा अहादीस को मैंने जमा करके वीडियो बना के लगाई हैं। और ये जो कागज का या कपड़े का परचम उठा के फिर रहे हैं ना, आयमा मेरी शफात ना करे अगर मैं झूठ बोलूं, आयमा की हदीसों में मिलता है कि वो जमीन का कपड़ा है ही नहीं, वो कपड़ा है ही नहीं, वो परचम जो है। और वो परचम जो है रसूलुल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी में एक दफा एक जंग में खोला है, उसके बाद उसको लपेट दिया है, और सिर्फ कायम आले मोहम्मद रसातु वसलाम खोलेंगे उसको। और वो परचम, उसकी चोब जो है अर्श की चोब है, और वो परचम जो है खौफ यानी वो गज़ब इलाही का है। वो परचम जो है, वो परचम कागज कपड़ा नहीं है। ने तो वही परचम बनाया हुआ है ना, कपड़े वाला। इन्होंने यही किया हुआ है ना। हालांकि अहादीस अंबार लगे हुए हैं परचम के ऊपर कि वो परचम कैसा होगा, वो परचम चीज क्या थी। और ये हदीस तो आपने सुनी हुई है ना कि जब कायम आले मोहम्मद वसलाम का ज़हूर होगा तो खौफ कायम आले मोहम्मद से अगर वो सफर करते हैं ना मक्का की तरफ, तो 1 महीना पहले ही खौफ मक्का में पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल है। और अगर वो कूफा की तरफ जाती है तो 1 माह पहले खौफ कूफा में पहुंच जाएगा। और अगर वो शाम में जाते हैं तो यानी वो आगे हिसाब लगा लें कि वो क्या चीज होगी। ये कैसा खौफ है जी, ये कैसी धमक है, ये कैसी अलामत है, ये कैसा हंगामा है जो किसी के जाने से पहले ही पहुंच जाता है, और उसके असरात। अल्लाह अकबर। अब ले आए कोई ऐसा अलम जो डीजे हो। फिर ये डीजे वाला अलम लेके घूम रहे हैं। सर जी उन्होंने एक और बात बहुत गलत करी, जिस पर मैंने बहुत सोचा उस पर, कि मोमिनीन के सामने रसूल क्यों मुआवजा करते। वो तो मोमिन थे ऑलरेडी, वो तो काफिर उनके लिए था कि काफिर मुसलमान हो जाए, उनके लिए वो मुआवजा था। वो मुआवजा तो मोमिन के लिए था ही नहीं। देखो ये बात जो है कि देखो ये नहीं कि अगर वो उनका अकीदा गलत है तो हम झूठ सच को भी झूठ की तरफ पलटा दें, ऐसा नहीं है। मुआवजा 2 असर छोड़ता है, मोमिन के ईमान में इजाफा होता है और काफिर के कुफर में इजाफा होता है। मोमिन खुद तलब नहीं करता, जो हकीकी मोमिन है वो तलब ही नहीं करता। उसकी मिसाल आला लेवल की सरकार सुलेमान मोहम्मदी हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ना रसूल अल्लाह से मौजज़ा तलब किया है, ना मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब रसातु वस्सलाम से। क्यों कि उन्होंने हकीकी दलाइल नबूवत और इमामत से उनको पहचाना हुआ था। तो जब हकीकी दलाइल इमामत से पहचान लिया जाए तो मौजज़े की जरूरत नहीं रहती। क्या बात, बेशक सही, यकीन कभी भी मौजज़ा नहीं मांगता, नहीं मांगता, यकीन नहीं मौजज़ा मांगता। मोइज़ेस। हाँ जी बेशक कैसे।
मैं तो यकीन को मोजा कहता हूँ। हाय हाय वो ही मौजा है, वाह, यकीन वाह, ही वाह, मौजा बात है। है, बहुत आला सैयद, वाह मुआवजा है, क्या बात है। वाह। वो यकीन ही था जो पानी पे चला देता था खिजर को। शक बेशक। जी, बल्कि ये तो एक आध किस्म के इस किस्म के वाक़यात भी हुए हैं कि वो अब मुझे हंसी आ जाएगी। हमारे उधर रावी में कुछ दूध वाले गवाले थे, तो ये अक्सरियत में मसाजिद में, पता नहीं है या नहीं है, लेकिन वो बताते थे कि मौलवी साहब ने कहा जी कि बिस्मिल्लाह पढ़ो तो पानी राह दे देता है। तो वो गवाले को रावी जो है ना क्रॉस करनी पड़ती थी। तो रियलिटी भाई सैयद वो क्या करता था गवाला, उसने एक दिन पढ़ा और पानी ने राह दे दिया। वो रोज़ आना जाना शुरू कर दिया उसने। तो उसने मौलवी साहब से जाके एक दिन कहा कि मौलवी साहब आपने मेरा बड़ा भला कर दिया है, मेरा तो आपने रास्ता छोटा कर दिया है। उसने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा ये मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो पानी ने रास्ता छोड़ा और वो चला गया। तो उसने कहा मौलवी साहब आप भी आओ। मौलवी साहब ने पैर रखा तो डूबना शुरू कर दिया। तो ये यकीन है जिसका नाम अब मैं यहाँ लूँ या ना लूँ पता नहीं, लेकिन चले मैं ले लेता हूँ, जिसका नाम इसमें आज़म है। ये भी यकीन ही है। वाह, बहुत आला मिस्र भाई, बहुत आला, क्या कहना है। अब ये कितना बुलंद होता है, जितना बुलंद होता है उतना आज़म होता है, जितना बुलंद होता है उतना आज़म होता बहुत है, खूबसूरत, जितना बुलंद होता है उतना आज़म होता है। ये यकीन आज़म का नाम ही इसमें आज़म है। वाह। अच्छा मिस्र भाई, यहाँ हम एक चीज़ को मैं करना चाहूँगा क्लियर। मिस्र भाई, अभी जैसे कि ये ईमानी का दावा तो होना तो सरकार इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले है, कबल ज़हूर होगा। तो ज़हूर से होने वाले जो पहले दावे हैं उनको बातिल भी करार दिया गया है। तो ये किस तरह से है, इसको देखते हैं मिस्र भाई। कि रियलिटी भाई रिवायात में तो एक ही दिन में सुफियानी भी है, यमानी भी है और खुरासानी भी है। और उस दिन को मदद चाहता हूँ कथा कलामी के लिए, उस दिन को ये एक ज़माना करार देते हैं ना। वो कहते हैं कि एक ही ज़माने में इनका ज़हूर होगा। नहीं, एक साल, एक दिन और एक ही महीने में। इसीलिए एक साल बताया कि अगर ज़माना भी लेते हैं तो साल आएगा, अगर ये फिर कोई इश्तबाह लगाते हैं तो महीना आएगा, और अगर फिर ये कोई इश्तबाह लेते हैं तो एक ही दिन में। और वो एक दिन जो होगा उसी साल में होगा, और उस साल के किसी एक महीने में होगा, और उस महीने के किसी एक दिन में होगा। यानी ये कोई ऐसी हकीकत है कि जो एक ही साल में, उसी महीने में, उसी दिन में वाक़या होगी। जो इसको देखें, दिन को झुटला सकता है, महीने को झुटला सकता है, साल को झुटला सकता है। अब ये तीनों हकीकतें अगर झुटलाएगा तो फिर तो वो चोर हो जाएगा। कोई एक जगह पे तो आए। फ़र्ज़ करें यमानी को अभी निकले हुए 2006 से ये आया है, या 99 से, या 2004 से आया, अभी तो 26-27 साल हो गए हैं, दूसरे अभी तक नहीं आए इसके पीछे पीछे। सर मेरा सवाल है यहाँ पर, अगर यानी कि सारे जो करामात है वो सामने आने हैं तो सारे एक ही साल में आने हैं ना, क्योंकि ये जो 9 महीने का सुफियानी का हुकूमत है और इसके अलावा 6 दिन दज्जाल का हुकूमत है, ये जितनी भी मुआज़ात हैं, मगरिब से सूरज को निकलना, ये सब एक ही साल निकले हैं ना। देखें, इसके अंदर आप दिमाग में ये रखें कि ये जो 5 निशानियां हैं ना, ये 5 निशानियां एक निशानी दूसरी निशानी के साथ जुड़ी हुई है। जैसा कि अभी मीसम भाई ने आपके सामने हदीस बयान की कि एक ही साल, एक ही माह और एक ही दिन, इन दोनों का सुफियानी और यमानी का खरूज होगा। तो पता चला ना कि सुफियानी यमानी के साथ जुड़ा हुआ है, यमानी सुफियानी के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब ये याद रखें कि अब दूसरी अलामत, तीसरी अलामत ये है, यानी कि यहां से आपने अंदाजा लगा लेना है कि ये कितनी करीब होंगी। यानी एक ही दिन सुफियानी और यमानी का खरूज होता है, और उसके बाद सुफियानी जो है वो मक्का पर हमला करने के लिए अपना लश्कर भेजता है। तो मक्का और मदीना के माबैन की जो जमीन है ना, खसफ बेदा के नाम से वो जमीन फटेगी, वादी बेदा।
वो फटेगी और सुफियानी का सारा लश्कर जमीन बोस हो जाएगा। तो पता चला कि सुफियानी होगा तो ये काम होगा ना। तो अब सुफियानी की टोटल हुकूमत है 9 महीने, इमाम ने फरमाया है 9 महीने। जी। टोटल कितनी हुकूमत होगी? जब इसकी हुकूमत कायम हो जाएगी तो फकत और फकत 9 महीने इसकी हुकूमत रहेगी। तो इसकी हुकूमत जब कायम होगी तो इन 9 महीनों में ही ये मक्का पर हमला करने के लिए भेजेगा ना अपनी फौज को। बिल्कुल सर। ये तीसरी अलामत जुड़ गई आपके साथ। चौथी अलामत क्या है? इस ही मक्का के अंदर नफ्से ज़की का कत्ल। इमाम ने फरमाया कि ये 26 जिलहज को होगा। जिलहज का महीना होगा और 26 जिलहज होगी, ये कत्ल होगा। और इसके कत्ल के बाद इमाम ने फरमाया 14 रातें अपनी उंगलियों पर गिन लेना। 14 रातों के बाद, अब देखो दिनों की बात आ गई, पहले महीनों सालों की बात चली, अब दिनों पर आ गई कि नफ्से ज़की के कत्ल के और ज़हूर कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान 14 रातों का फैसला है। ये फैसला जो है, क्या कहते हैं, फासला जो है 14 रातों का, यहां से आपको तयन हो गया। ये 26 जिलहज से 10 मुहर्रम बनती है। बिल्कुल 14 रातों को 26 जिलहज से गिने तो 10 मुहर्रम को अगर ज़हूर कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम होता है तो ये 26 जिलहज बनती है। 26 जिलहज को नफ्स ज़की का कत्ल होगा। अल्लाह अकबर। अब जब उसके बाद निदाए आसमानी, यानी 14 रातों के बाद जब नफ्स ज़की कत्ल हो जाएगा तो आसमान से एक निदा आएगी। और वो निदा क्या होगी? कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और सर जी इससे ये वाज़ेह होगा कि अबू सुफियानी के हुकूमत के दौरान ही ये रमज़ान में जो निदा आने वाली है, हाँ। या जो वो दूसरा जो आवाज़ जो सुर पहुंचा जाएगा वो भी इसी में है ना सर जी? हाँ। इसी सुफियानी की हुकूमत में है। मैंने आपको बताया था कि वीडियो को जाके देख लो, उसमें 6 महीने हैं, रजब, शोबान, ज़िकात, जिलहज और मुहर्रम, शवाल, ये 6 महीने हैं। इन 6 महीनों के ऊपर मैंने वीडियो बना के लगाई हुई हैं। इन 6 महीनों के अंदर कुछ निशानियां हैं जो पूरी होनी है। वाह, सही हो गया सर जी, बहुत आला। अभी मैं क्लियर हो गया, मैं बहुत कंफ्यूज था इसमें। मैं समझ रहा था कि एक साल के कुछ निशानियाँ एक साल में होंगी, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में, ये सारा क्लियर हो गया। यानी एक साल में सब कुछ होगा। इनकी तरतीब भी यही है जो सैयद ने बताई अभी। हाँ, मैंने पिछले साल जो हिसाब लगाया था वो बहुत अजीब था, 3-4 महीने पहले। सही हो गया, मैं हिसाब नहीं लगाऊंगा, बस अपना अंदाज़ा रखूंगा अपने जहन में। अब्दुल्ला हाशिम या अहमदुल हसन आए हैं ना सर जी अभी तक वो तकरीबन 20 साल उनके हो गए हैं और वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा। ज़िंदगी गुजर रही है वो भी ज़िंदा हैं, सब ज़िंदा हैं अदल भी कायम नहीं हुआ और कोई सूरज भी नहीं आया, बल्कि खुद पकड़े गए। अब यहाँ एक पॉइंट और हाईलाइट कर दूं अगर आप साहब की इजाज़त हो। बिस्मिल्लाह। अब सवाल आपने ये करना है कि यमानी पैदा होगा या खरूज करेगा? पॉइंट को सुन लें। जी जी। पैदा होगा या खरूज करेगा? तो अहादीस कहती हैं कि वो खरूज करेगा। खरूज करेगा। अब गौर और फिक्र रखनी है कि खरूज जो करता है ना, वो अचानक से करेगा और उस वक्त वो जो हालात बिगड़े हुए होंगे वो लोगों के सामने 6 महीने 20 साल नहीं गुजारेगा। वाह, दोबारा सुन ले, चटपट करेगा, दोबारा सुन ले। चटपट करेगा वो, क्योंकि उसने बातिल के मुकाबले में आना है। वो बैठ के लोगों के बीच में अपने आप को यमानी नहीं मनवाएगा, वो अचानक यमानी सुफियानी जो के मुकाबले में जाहिर हो जाएगा। वाह सर जी, वाह, बहुत आला, जबरदस्त हो गया सर जी, बहुत आला हो गया सर जी। ये तो
अगर वो पहले खुद को ज़ाहिर कर देता है तो सुफियानी जो है वो उसको जान लेगा, तो फिर वो अपने बहुत से निज़ाम बदल देगा। वाह, में तो कोई किसी के लिए रिस्पेक्ट है ही नहीं ना, डायरेक्ट तलवार की बात है। हाँ, वो फौरन निकलेगा, वो खरूज करेगा। इमाम ने आपको हुक्म ही खरूज का दिया है कि जब यमानी खरूज करे तो उसका साथ देना। ये नहीं कहा कि जब वो पैदा हो तो उसका साथ देना। ये तो मौला आपको सलामत रखे, बहुत सी क्लियरेंस हो गई सर जी। सुभान अल्लाह सैयद, बहुत अल्लाह। सैयद मैं उस दिन पे जिक्र कर रहा था मिसम भाई से कि अब जो कुछ अहबाब हैं वो कहते हैं कि ये जो है ना वो सब निशानियां पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि अभी आपने तालीम फरमाया कि ये तो सारा 1 साल 1 महीना 1 दिन का, जैसे मिसम भाई ने भी हदीस बयान फरमाई कि ये जो पूरा टाइम बन रहा है ये तो मैक्सिमम 1 साल 1 महीना और 1 दिन बन रहा है। यानी ये सारी निशानियां जो है इस अरसा में रूनुमा होंगी। तो अब जो कहते हैं कि ये सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, तो उनके मुताबिक फिर किस तरह से वो किस बुनियाद पे ये कहते हैं कि सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं? यार मैं सिंपल सी, मैं अब तुमको एक मिसाल दे दी तुम, ताकि बात मजीद आगे चलेगी। मुझे ये बताओ, यमानी का तलक जो है, मुकाबला जो है वो सुफियानी के साथ है ना। जी बिल्कुल। अब यमानी को हटा दो, ठीक है। क्या सुफियानी लोगों के बीच में आके 20-26 साल गुजारेगा और कहेगा मैं सुफियानी हूं? कभी भी नहीं। तो सुफियानी ने जब जुल्म की बुनियाद पर ही वो सुफियानी है ना, जी ये सिफ्त है ना सुफियानी की, जुल्म। हाँ जी बिल्कुल। तो वो अपने जुल्म को जब ज़ाहिर करेगा तो यमानी ज़ाहिर होगा ना। जी हाँ। इन दोनों ने मैच तो नहीं खेलना ना 20-25 साल। बहुत आला, बहुत आला। हाँ, तो ये सुफियानी जो है, ये सुफियानी अपने जुल्म के जब उस अरूज पर पहुंचेगा तो यमानी ज़ाहिर हो जाएगा। यमानी ज़ाहिर क्यों होगा? अब गौर फिक्र करें इस पॉइंट के ऊपर। तमाम उलमा, शिया जितने उलमा हैं, उन तमाम ने ये बात लिखी है कि सुफियानी की हुकूमत कायम होने को 6 महीने लगेंगे। टोटल इसके पास 15 महीने होंगे, जिनमें 6 महीने ये लगा के अपनी हुकूमत को कायम करेगा। जब इसकी हुकूमत कायम हो जाएगी इन 6 महीनों में उसको यानी जुल्म करने की बुनियाद पर, तो फिर जब हुकूमत कायम हो जाए तो ये 9 महीने से तजावज़ नहीं करेगी। और 9 और 6 कितने हो गए टोटल? 15 महीने। 15 जी। अब टोटल 15 महीने यमानी को चाहिए अगर सुफियानी के मुकाबले में आना है। हालांकि इससे ज्यादा 15 महीने भी नहीं चाहिए यमानी को। जब सुफियानी जुल्म के अरूज पर पहुंचे तो यमानी को यमानी जो ज़ाहिर होना चाहिए। 15 महीने हैं टोटल सुफियानी के पास और 26 साल यमानी को हो गए आए हुए। जी हाँ। गौर फिक्र करो, मजाक इससे बड़ा और क्या मजाक होगा? वो तो गयानी है इनके तो पास। खुद भी गायब हो गए सैयद। हाँ जी, वो तो गयानी है ना। मौजूद उसने क्या दिखाना था? रियलिटी भाई तो गयानी है, यमानी नहीं। हाँ जी बिल्कुल। बिस्म भाई, हमेशा एक मासूम का ये कानून है, मासूम ने जो दिया है कि बातिल जब भी आता है वो हक के मुकाबले में आता है। बेशक बेशक। तो ये जितना निज़ाम है सुफियानी का, दाश का जो सिस्टम आया था, अगर हदीस सच्ची है 9 महीने से तजावज़ नहीं कर सकता सुफियानी उसकी हुकूमत। अब तो सैयद उसको भी कितनी देर हो गई। जज़ाकल्लाह। जी हाँ। तो इस पर तो हमारे शियों का अक्सरियत का ये इत्तेफाक है कि दाश जो थी ये वो सुफियानी नहीं, ये सेकंड सुफियानी है, हकीकी सुफियानी नहीं, उसका करिंदा है। बिल्कुल। वाह। क्यों सही कि यहाँ- अगर वो हकीकी मान लिया जाए तो वो सारी हदीसें रद्द हो जाएंगी। जी बल्कि वो उसका 15 ले 9 पालक महीने बच्चा जी है। बिल्कुल। सैयद, अगर आपकी इजाज़त तो यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है। सैयद, सवाल ये है कि अब जैसा कि हदीस में बयान फरमाया गया कि यमानी का परचम हिदायत का परचम होगा, तो क्या इससे पहले जो परचम बुलंद हुए हैं या इससे पहले जो लोग दावेदार हैं वो उनके पास हिदायत नहीं है? और अगर जो यमानी का परचम हिदायत का परचम है तो हिदायत से मुराद यहाँ पर क्या है? मैंने आपसे अभी अर्ज किया है ना कि गौर व फिक्र करें कि क्या यमानी ने आके लोगों को दीन की तालीम देनी है या सुफियानी के साथ मुकाबला करना है।
ये 2 पॉइंट है। जी मैं सिंपल सवाल आपसे कर रहा हूं, आप अपने दिमाग में जो बैठा हुआ है ना उसको निकालें पहले। आप ये बताएं कि सुफियानी, जिसको आप सुफियानी कह रहे हैं, इसका मानी क्या लेते हैं? जुल्म और सितम करेगा, कत्ल व गारत जुल्म करेगा, और सितम अदल को करेगा। खत्म करेगा। जी तो जुल्म और सितम के मुकाबले में आने वाला लोगों को जुल्म से बचाने के लिए हथियार उठाएगा या नहीं? बिल्कुल। मैं दो रास्ते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके वाज़ह कर रहा अब हूं। सईद यहाँ दुआएं तो नहीं होंगी ना, अब तो यहाँ दुआएं पर नहीं हाथ होंगी। उठाना पड़ेगा, ये तो यानी जी असला उठाना पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत बढ़ चुका होगा उस वक्त। जज़ाकल्लाह। तो जी हाँ, तो वो तकलीद का बेड़ा गर्क है। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट ये है कि गौर व फिक्र करो कि एक शख्स मुझे आके मेरे घर में मुझे कत्ल कर रहा है और मुझे आके कुरान की तालीम आप देना शुरू कर दें, मुझे उसका फायदा होगा, लेकिन वो सुफियानी का मुकाबला तो नहीं हो रहा। बिल्कुल, खरूज वाले लोग चाहिए होंगे। वो खरूज के मुकाबले में खरूज चाहिए। मैं दूसरे फिर बार नंबर बार पे पॉइंट को वादे हाईलाइट ना- कर रहा हूँ जी। इसको यहाँ पर हिदायत से मुराद हम ये लें। अभी नहीं, अभी नहीं, रुको इसको, यार। इसको ऐसे लेते हैं सैयद, एक मसला है, शरई मसला है। जी वो ये है कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और उसके सामने एक बंदे ने पानी में छलांग मारी और वो डूबने लग पड़ा। शरीयत कहती है ये नमाज छोड़े और उसको बचाने जाए, हत्ता के रोजे की हालत में हो, रोजा भी ताकि रोजे बिल्कुल जी, जी। ये रोज़ा भी तोड़ेगा, ये नमाज भी छोड़ेगा, ये उसको बचाएगा जाके। अब जुल्म बढ़ चुका है, सितम बढ़ चुका है, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब ये काम नहीं होने के तबलीग की जाएगी या नमाज रोज़ा हज ज़कात बताया जाएगा, अब होगा मुकाबला। वाह, खरूज का मानी समझ आ गया कि खरूज क्या है? बहुत आला। खरूज मगर के अब इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं कि वो तो बातिल का परचम होगा, तो जो यमानी खरूज करेगा वो हदायत का परचम होगा, इस तरह भी हम ले सकते हैं ना। जी उसकी तरफ आते हैं अलवी साहब, अब सही कह रहे हैं आप, 100% सही कह रहे हैं, 100%। बहुत आला, बहुत आला। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि अभी हमको खरूज का मानी सही समझ आ जाए कि खरूज का मानी ये है कि जालिम के मुकाबले में आना है। वहां हमने मदरसा नहीं बनाना, बल्कि जालिम का मुकाबला करना है। बहुत आला, क्या बात है। मिसाल के तौर पर अभी लोगों का कत्ले आम हो रहा है और जिसको जो कत्ल कर रहा है हमने उसको उस कत्ल से रोकना है। मुकाबला ये खरूज होगा। अब अगर वो कत्ल कर रहा है, मैं मस्जिद में बैठ के अजानें देनी शुरू कर दूं तो कोई फायदा होगा? बिल्कुल सही है, बहुत आला। अब सुफियानी को जाके ये तो नहीं कहेंगे यार कत्ल करना अच्छी बात नहीं है, प्लीज ना करो। ओ अगर उसने ये बात सुननी होती हाँ, अगर उसने ये बात सुननी होती तो वो सुफियानी होता ही क्यों? होता ही क्यों, उसको तो उसके तरीके से बताना पड़ेगा। उसके मुकाबले में आना है। बेहतरीन हो गया सैयद, हाँ। बेहतरीन हो गया। अब एक है खरूज, एक है ज़हूर, एक है क़ियाम। अब ठीक। इनसे सवाल करो कि यमानी क़ियाम क्यों नहीं करेगा, खरूज करेगा? क्या बात है, क्या बात है। तो ये कहेंगे क़ियाम का मानी भी यही है, क़ियाम का मानी भी ये आपको यही देंगे जो खरूज का दे रहे हैं। बिल्कुल यही लेते हैं, ये सवाल किया था अच्छा। उससे अली गिलानी से। जी जी, तो हकीकत में ये तो मानते हैं कि जो हकीकी इल्म है वो सिर्फ इमाम के पास है, इमाम के अलावा किसी के पास हकीकी इल्म नहीं। बेशक। तो जो इमाम का क़ियाम होगा और एक इमाम का खरूज होगा। इमाम का खरूज भी तलवार के साथ है, दोबारा सुन लें, और यमानी का खरूज भी तलवार के साथ है। इमाम का क़ियाम इल्म और तलवार दोनों के साथ, खरूज सिर्फ तलवार। वाह, दोबारा बहुत सुन आला। लें, इमाम का खरूज सिर्फ तलवार और इमाम का क़ियाम खरूज तलवार और इल्म दोनों, लेकिन खरूज में सिर्फ तलवार। वहां इमाम जब तलवार उठाएंगे तो वहां इल्म नहीं फैलाएंगे, वाह, सिर्फ कत्ल करना है। इमाम से पूछा गया था
अहादीस बनी हुई हैं, मिसम भाई को वो हदीसें याद होंगी कि रसूल अल्लाह का ज़माना सख्त था या मौला कायम आले मोहम्मद का ज़माना सख्त होगा। मिसम भाई ये हदीसें याद हैं आपको? जी बिल्कुल, कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु का ज़माना ज़्यादा शदीद है, ज़्यादा शदीद ज़्यादा होगा। सख्त। तो इमाम ने क्या फरमाया कि इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब तलवार उठाएंगे तो अपने नाना की सुन्नत पर अमल करेंगे। तलवार उठाएंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने दीन में दाखिल नहीं होना। क्या बात है सैयद, यही अदल है, जी। तलवार ही वही चलनी है। जिसने के लिए रास्ता खोला हुआ है। बिस्मिल्लाह आदरी भाई, बिस्मिल्लाह। जी सैयद ये पूछ रहा था मौला के क़याम के वक्त यानी इल्म के साथ दूसरा क्या चीज़ होगा? एक खरूज है, एक क़याम है। इमाम ने खरूज भी करना है, इमाम ने क़याम भी करना है। जी सुफियानी सिर्फ यमानी सिर्फ खरूज करेगा, क़याम नहीं करेगा। सो दैट मीन्स जब इमाम क़याम करेगा सो क़याम में तो मौला इल्म और हिदायत भी फैलाएंगे, क्योंकि वो तो इमाम इसलिए है नहीं चूँकि हमारा ये मेरा अकीदे के मुताबिक, क्योंकि हदीस का मुझे नहीं पता कि इमाम बस आके और तलवार लेके सबके सरों को उड़ा देंगे। इमाम हिदायत करेंगे, इल्म करेंगे। ये क़याम ये तो आप जानते हैं ना कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार 70 नस्लों को देख के चलती थी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। अगर किसी नस्ल में किसी मोहम्मद ने आना है तो इमाम की तलवार उस पर नहीं चलती थी। बेशक बिल्कुल ऐसा सैयद, ही है। तो बेशक। कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जो खरूज है वो इस मानी में है, यानी उन लोगों पर तलवार चलेगी जिनमें किसी एक ने भी ना खुद मोमन होना है, ना उसकी नस्ल से किसी ने इस्लाम में दाखिल होना है। वाह 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 वाह, यानी बिल्कुल बेशक सही है। बहुत आला सैयद, बहुत आला सैयद। की सफाई भी है ना, बिल्कुल सफाई है इस तरह की, जैसे कि सैयद यहाँ एक बड़ी अहम सॉरी चीज़ माजरत है। चाहता हूँ, जी जी, अब वो भाई बात करें। इसमें इस तरह सफाई ना कि जब मोमिन ख़त्म होंगे तब इमाम आएंगे ना, क्योंकि किसी यानी कि मुनाफिक से जब मोमिन खल्क नहीं होंगे तब तो इमाम आएंगे नहीं। इमाम की तो आखिरी वक्त आना है। क्या बात है, वाह। इमाम ने फरमाया कि जब तक काफरा माँ के शिकम से मोमन और मोमना माँ की शिकम से काफर दुनिया में ना आ जाए, आखिरी मोमन तक इंतजार होगा, वरना या आदत नहीं ये रहेगा। वो या फैसले का हुसैन। दिन है, यौम फैसले का ना मी का था, वो तो फैसले का दिन होगा। उस दिन तो तलवार चलेगी फैसले की। उसके बाद तो आप जो कह दिया बाबे इमाम कि जिस काफिर माँ के बतन से आखिरी और जिस मोमना के माँ से आखिरी काफिर ना पैदा हो जाएगा तो वो तलवार तो अदल की चलेगी उस दिन। बेशक ऐसे ही। सैयद जैसे कि तो अभी तरीम फरमाया, ये ज़हूर और खरूज वाला जो मामला है, तो हम क्या देखते हैं कि दिगर जो गुज़श्ता हुज्जतान खुदा हैं, तो हमें उनका ज़हूर भी नज़र आता है और हमें उनका खरूज भी नज़र आता है और क़याम भी नज़र आता है, लेकिन क़याम कायम सिर्फ इमाम कायम का होगा। मैंने आपको बेहतरीन बताया ना तरकीब। कि इमाम से सवाल हुआ है, मिस्म भाई बैठे हुए हैं, कोई मोहम्मद भी जब भी किसी का दिल चाहे हदीसों को देखना, उसके पास पूरा हक है। आयमा से सवाल हुआ कि कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को कायम क्यों कहा जाता है। बिस्मिल्लाह। अब आगे सोच लें कि क्या यमानी हो सकता है। इमाम से सवाल हो रहा है कि कायम आले मोहम्मद को कायम क्यों कहा जाता है, तो आयमा जवाब देते हैं कि खुदा के मुर्दा दीन को जिंदा करने की वजह से। अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, क्या बात है, अब बताएं वाह, मुझे, वाह, वाह। क्या ये सोचेंगे- सिर्फ मासूम इमाम की है, यमानी की नहीं, इसलिए वो क़याम नहीं कर नहीं। सकता। कहाँ तक वाह, मर वाह। जाएगा दीन, जी ये भी जरा कमाल सोच है लीजिए। सैयद। कहाँ तक मर जाएगा दीन, ये भी सोच लीजिए। वो जी जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अल्लाह अकबर सैयद, अल्लाह अकबर। मसीह इब्न मरियम मुर्दों को जिंदा करते थे, ये मुर्दा दीन को जिंदा करे। अल्लाह अकबर, जी जी जी। ओ हो, कैसा मौजज़ा होगा। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह के बंदों को जिंदा करते थे, ये अल्लाह के दीन को जिंदा करेगा। अल्लाह अकबर, वाह।
ریالٹی آگا اس حدیث پر آپ نے غور کیا؟ یہ بالکل قرآن کی اس آیت پر نص قائم کیا امام نے، هو الذی ارسل رسولہ دین الحق بالہدی دین الحق ولیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی دین کو زندہ یہ جو سر جی وہ جو آپ نے بات کہی تھی میں نے سنا ہے اباؤٹ کہ سید سارے قتل ہو جائیں گے، ایسا ہی ہے؟ کوئی دنیا میں سید نہیں رہے گا، مطلب سب قتل ہو جائیں گے امام علیہ السلام کے دور سے پہلے؟ یہ تو بڑا اچھا نہیں کام ہوگا. تو صحیح کیا ہی قاضی سے کہتے ہیں کہاں تو اچھا ہی. قسم سے سر جی بڑا اچھا کام ہو جائے گا. میں ایک شخص تھا نا، سید سادات کا معاملہ ہے، ہم چپ، ہمیں چپ ہونا چاہیے، آپ لوگوں کا معاملہ ہے. سادات کی بات آپ کو بتاتا ہوں. تو ایک شخص تھا، تو سید ہی تو باقی رہے گا. ہائے 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 ہائے. اچھا باب الرحمان سر کی بات کمپلیٹ ہونے دیں. کینیڈا کا مجھے نہیں پتا. ہاں یہ ہمیں اچھا ہو. اچھا، ایک بندہ تھا نا، تو اس کی محفل میں نا کچھ سید بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں ایک سید کا بچہ تھا، تھوڑا سا شرارتی تھا. تو اس نے اس کے ساتھ کوئی شرارت کر دی. تو اس نے اس کی آنکھیں بڑی بڑی کر کے اس کی طرف دیکھا. تو بندے نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں حیران ہوں کہ جہاں یزید نے چن چن کے کربلا میں سادات کو مارا ہے، اس کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ تو بات وہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی باب امام سید کی حیبت ہی اتنی ہے، اس کی حیبت سے ہی منافق اور مشرک جلتا ہے، ڈرتا ہے. سید ختم نہیں ہو سکتا. میں سوال ہی ابو غزبہ کو حدیث سنا دیتا ہوں. حدیث ابو غزبہ، یہ حدیث سنو. ایک حدیث نہیں ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں. مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی نظر سے یہ ساری حدیث گزری ہوں گی. قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سرکار صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی محمد کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو زندانوں سے سادات کو، بنو ہاشم کو نکالے گا. اللہ اکبر، کتنی مظلومیت ہے سادات. یہ بڑی بڑی حدیث ہے، بہت بڑی حدیث ہے. بسم اللہ سے، بسم ہو اللہ. گیا. یہ میں ابو غزبہ کے لیے بیان کیا کہ اگر سادات سارے کے سارے ختم ہو گئے تو زندان سے سادات کو کہاں سے نکالیں گے امام؟ بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی جی صحیح ہو گیا. میں یہاں پر زندان اسی بھرے حدیث میں ہوئے کہیں ہوں سنا گے تھا. اس وقت سادات سے. سید میں نا کل ایک بندے کو ملا ہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا وہ سید ہے. وہ بھی جہاں سے یہ بندہ پہلے آیا تھا نا، یہ حیدرآباد دکن کا تھا وہ. تو اس نے مجھے بتایا کہ میری آدھی فیملی سنی ہے اور ہم آدھے شیعہ ہیں. مجھے بڑی ہنسی آئی اس پر کہ تم سید ہو اور نقوی سید ہو اور کہہ رہے ہو کہ آدھی. اس نے کہا کہ وہ جو اورنگزیب کے دور میں بہت سے سادات ایسے ہیں جن بیچاروں کو تقیہ کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا، اور اب وہ خود کو چھپاتے پھرتے تھے اس دور میں. ذرا سوچئے کہ اورنگزیب کے دور میں یہ حال تھا، آگے کیا ہونے والا ہے. بالکل. ابھی دیکھ رہے ہیں، ابھی بیچارے جن لوگوں کے نام، سادات کو تو چھوڑ دیں، جس کے نام میں حسن حسین آیا ہے اس کو نہیں چھوڑ رہے. چھپا رہے ہیں، بالکل تبدیل کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر. بالکل ایسے ہی. حیدری ابھی آپ نے آیت پڑھی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی دین کلہ ولو مشرکون. کرہ المشرکون. جی بالکل. یہ آخر والا بڑا مزیدار سید بات ہے. جی جی. ولو کرہ المشرکون، یعنی جو بھی کراہت کرے گا. ہائے 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 ہائے. اچھا، کراہت کر رہا ہے معصوم کی، امام حجہ کی، اللہ مشرک کہہ رہا دیکھیے شرک تو کہتے ہیں ہے. تو اصل شرک تو یہ ہوا نا. میسم بھائی، اس لیے تو میسم بھائی من یہ شرک. لاسٹ ٹائم باب امام سید نے جی جی بسم اللہ. جمعہ تو کرو، ہمیں سمجھ نہیں آئی.
من شرک ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فہو مشرکن، جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت میں کسی اور کو شرک کرے گا وہ مشرک ہے۔ یہ تو درست ہے، یہ تو بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت یہی ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم تو وہ ہے نہیں اللہ کے ساتھ اللہ کو شریک کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک تو اہل بیت علیہ السلام کسی کو شریک کرنا، اس کو شرک کہا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ تو شرک ہو ہی نہیں سکتا نا ابو غزوہ۔ اللہ کے ساتھ شرک بھائی نہیں ان ہوتا۔ کے ساتھ شریک کرنا ہی اللہ کے ساتھ شریک ہونا ہے نا۔ ایک آیت سنا دیتا ہوں اللہ قرآن سے کی، تو تب شریک۔ یہ آیت آپ کے پاس محفوظ ہوگی ذیشان اور میسم بھائی آپ کے پاس، کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ جی جی جی، تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص اس آیت کو لے کے آتا ہے کہ کیا مولا انبیاء اور رسول بھی شرک کرتے ہیں؟ تو امام مسکرائے اور کہا کہ اگر انبیاء اور رسول ہی شرک کرے تو پھر وہ نبی اور رسول کیسے ہوئے؟ تو کہا مولا یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر رسول اور نبی شرک کرتے ہی نہیں تو اللہ پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا تجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس آیت کا یہ مقصد نہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے سمجھائیں، یہ اصول کافی کے اندر پورا چیپٹر ہے اور جتنی شیعہ تفاسیر ہیں، کسی بھی شیعہ تفسیر کو اٹھائیں گے اس آیت کے ذیل میں یہی ملے گا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنے اصحاب کے بیچ میں بیٹھتے تھے تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی بات لوگوں کے سامنے کرتے تھے۔ تو غدیر خم سے پہلے کی بات ہے، کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ سے یہ کہا کہ جہاں آپ اپنے ساتھ علی علیہ السلام کو اپنا ولی قرار دیا ہے تو ہم میں سے بھی کسی کو ولی رکھیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے تو فوراً قرآن کی یہ آئے، اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ اے رسول علی کی ولایت میں کسی کو بھی شامل کرنا شرک ہے۔ یہ اس آیت کی تفسیر جتنی شیعہ تفسیر ہے سب کے اندر موجود ہے۔ اور شرک کی یعنی شرک خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کر کے اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے کسی کو خلیفہ بنانا، یہ بھی شرک ہے۔ امام بنایا، بے شک بے شک۔ امام کے بنائے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کے کسی اور کو امام بنانا، یہ بھی شرک ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ شداد نمرود فرعون جو تھے نا بڑے ملعون تھے، مشرک تھے نا، مشرک تھے نا۔ مشرک تھے، اس آیت کے شداد ذہن میں نمرود۔ مشرک رہے نا۔ اس آیت یہ تو سارے مشرک اب بنے ہیں نا، پہلے یہی لات منات اور عزا تھے۔ لیکن سر یہاں پر جب عراقی کہتے ہیں نا امام وفا عباس سمدار علیہ السلام کو کہتے ہیں سر جی، شرازی یار ان کا قصور نہیں ہے، وہاں لفظ امام دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک 12 ائمہ کی امامت کے لیے اور ایک فضیلت کی بنیاد پر مولا عباس کے لیے، قیادت کے لیے۔ قیادت کے صحیح لیے۔ ہو گیا، درست ہو گیا سر جی۔ تو وہاں وہ حقیقی امامت 12 کو ہی مانتے ہیں، کوئی 13 یا 14 کو نہیں مانتے۔ یہ سوچے نا کہ جی سر جی جی سر، جس طرح مشرک کے معنی آپ بتا رہے ہیں، پھر اس طرح تو مشرک، جی حدی بھائی میں عرض کر رہا ہوں، پھر اس طرح جی تو مشرک یہ احمد الحسن کو لے کے آ رہے ہیں اور جو عبداللہ ہاشم کو لے کے آ رہے ہیں، حقیقی مشرک تو یہ ہے نا کہ یہ گورے مشرک ہیں۔ گوروں کو تو بیچارے کو شرک کا پتہ ہی نہیں۔ حیدر بھائی ایک منٹ، میسم بھائی نیچے ایک میسج آیا ہے حیدر بھائی کا کہ کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ جی بالکل روایت موجود ہے، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پورا واقعہ ہے، اور عبداللہ بن عمر کا یہ واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عمر نے آ کے امام کو تانا مارا تھا۔ حیدر بھائی جتنی شیعہ معتبر کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس نے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو تانا مارا تھا، اور تانا یہ مارا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اس لیے گئے تھے کہ انہوں نے آپ کے جو جد ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا انکار کیا تھا یا شک کیا تھا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ جو اس کے تانے پر اس کو دکھایا، پھر اس مقام پر لے کے گئے اور اسی مچھلی کو بلایا اور حکم دیا اور کہا کہ اس کے سامنے کلام کر انسانی زبان میں،
हैदर भाई मैं नहीं समझा क्या लिखा है जरा दूसरी रवायात हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो सैयद आदम और हवा के बारे में पूछा है कि वो भी विलायत अली यानी इल्म आले मोहम्मद को रश की निगाह से जो हमारे पास रिवायत है कि देख के आदम और हवा जी को जी जी जन्नत जी से। जी, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जितनी भी किताबें हैं उसके अंदर ये मौजूद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की थी उस मनसब की, उस मकाम की। तो अल्लाह, आपको पता है कि अल्लाह आदल है, अल्लाह की तकसीम जो है उसके अदल की बुनियाद पर है। आदम अलैहिस्सलाम का जो हिस्सा था, जो भी उनका मनसब था, अल्लाह ने अता कर दिया था। तो उससे ज्यादा तजावज़ करना अपनी ज़ात पर जुल्म करने के मुतरादिफ है। और ये शिया अकायद और नज़रियात, हैदर भाई आपको पता होगी, कुरान का ये कानून है कि जो जालिम होता है ना, वो ना नबी हो सकता है, ना रसूल हो सकता है, ना इमाम हो सकता है। तो आदम अलैहिस्सलाम का जुल्म अपने नफ्स पर था, लोगों पर जुल्म नहीं था। और वो जुल्म यही था कि अपने हाथ से, यानी अपनी, अल्लाह क्या कुरान में कहता है कि मैं इंसान पर उतना ही वजन डालता हूं जितना इंसान बर्दाश्त कर सके। और अल्लाह की तकसीम यह है कि जिस अदल पर तकसीम है, जिसका जो हिस्सा था वो अल्लाह ने दे दिया है। तो आदम अलैहिस्सलाम का जो हिस्सा बनता था, तो उन्होंने इस मामले में अपने नफ्स पर जुल्म किया कि वो जिस हिस्से के वारिस हकदार नहीं थे उसकी ख्वाहिश की थी। जी तो बाबे माँ, फिर ये जो सवाल ताना मारा था अब्दुल्ला ने जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को कि ये हिकमत थी या इल्म था, तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मछली को हुक्म दिया। मछली ने फिर क्या कहा? मछली ने फिर फसीह जुबान में ये जवाब दिया कि हाँ, कि मैं मछली जो है, यूनुस अलैहिस्सलाम जो मेरे मछली में मेरे पेट में आई, मैंने रखा, वो इसी ही बुनियाद पर रखा था। हिकमत की बुनियाद पर या इल्म की बुनियाद? गवाही दी थी ना कि हाँ ये हुआ है। लेकिन ये याद रखें, मैं इसको दो पहलू में तकसीम कर देता हूँ। मैंने लफ्ज़ ताना इस्तेमाल क्यों किया, ताकि आपको ज्यादा वजाहत हो जाए कि इमाम को उसने ताना उनके इल्म और उनके मनसब के झैल में उसने ताना मारा था। जी जी, मैं समझ गया हूँ। जी जी, अगर वो ताना ना मारते, यानी कि अब्दुल्ला बिन उमर ताना ना मारता, तो इमाम उसको ये जवाब ना देते। लेकिन उसने इमाम पर ये एक किस्म का हमला किया था। ठीक है, बेशक ऐसा ही अब दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू सुन ले। हम कहते हैं कि इमाम जो कहते हैं वो ऐन हक होता है। इमाम कभी भी ऐसी बात नहीं करते। तो अंबिया की तकसीम में बाज अंबिया को बाज अंबिया पर फजीलत है, तो जवाब आएगा बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसी तरह इन तमाम मुसलमानों से सवाल होगा कि बाज मलाइका को बाज मलाइका पर फजीलत है, तो जवाब आएगा कि बिल्कुल है। जो जबरील का मकाम है वो दीगर फरिश्तों का नहीं। ठीक है, जो मैकाइल का मनसब है या मकाम है वो दीगर मलाइका का नहीं, इसराफील का नहीं। वो यानी कि ये तकसीम है। अब सवाल ये होगा कि ये तकसीम जो हुई या मलाइका के अंदर या अंबिया के अंदर, ये किस तरह हुई है? एक को दूसरे से ज्यादा फजीलत किस तरह मिली है? मनसब के लिहाज पर, मनसब के लिहाज से। तो कोई अमल तो ऐसा किया होगा ना जिसकी बुनियाद पर यह फजीलत किसी को ज्यादा मिली है। अलवी साहब जी बेशक। अब मैं कुरान की आयत पेश कर देता हूं। कुरान की ये आयत है कि जिसमें सूरह अराफ की 172 कि जिसमें अल्लाह मिसाक ले रहा है। आज जब खुदा ने मिसाक लिया है अपनी तौहीद का, तो किसी तमाम मखलूक जब खुदा की बारगाह में मौजूद है, तो उस मखलूक में जिसने सबसे पहले इकरार खुदा की तौहीद का किया है, और एक है जो जिसने सबसे आखिर में किया है, तो क्या दोनों का मनसब एक जैसा होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लॉजिकली नहीं। अब जिसने सबसे आखिर में किया है उसका तवक्कुफ पर सवाल उठेगा कि ये नहीं उठेगा? उठेगा कि भाई जहां पहला शख्स फजीलत पा रहा है उस इकरार पर, तो तुमको उस इकरार में इतनी देर क्यों लगी? जैसे भी जितने भी सेकंड लगी, जितने भी सेकंड सोचने पे भी लगी, बिल्कुल, लेकिन उसका मनसब उससे कम हो गया, वो अवलियत पा गया। पहले वाला इल्लत बन गई है ना, इल्लत बन गई, अवलियत पा गया। जी जज़ाकल्लाह। यानी कि ये इल्लत, किसी की फजीलत पर भी इल्लत है, दलील है, कोई वजह है, और किसी की उस फजीलत से कम फजीलत पर भी कोई वजह, कोई दलील जरूर है, जिसकी बुनियाद पर उसको कम फजीलत मिली है। जी। तो अंबिया यूनुस अलैहिस्सलाम
हम कहते हैं कि आयमा ने यूनुस अलैहिस्सलाम के अलावा के बारे मुतल्लिक मजीद चीजें भी बयान की हैं। एक तरफ ये कहा है, दूसरी तरफ आयमा ने ये कहा है कि अंबिया जो होते हैं वो मासूम होते हैं, बेशक है, सही है, और ये कानून है हमारे आयमा का दिया हुआ। बेशक। तो इस मानी में हम उस जब मासूम कह देते हैं तो हम यूनुस अलैहिस्सलाम के इस अमल को हम गुनाह नहीं कहते, हम हिकमत कहते हैं। हिकमत कहते हैं, माशाअल्लाह। तो इमाम ने उसके ताने की बुनियाद पर इस हिकमत को जाहिर किया। अगर वो ताना ना मारता तो इमाम यूनुस अलैहिस्सलाम की इस्मत पर ही बात करते। जी 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 जी, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। बल्कि उसके सामने सैयद मछली ने मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की इमामत की गवाही दी और पूरा किस्सा जो था वो भी बयान किया। बेशक बेशक ऐसा है। तो इस हिकमत में सबसे पहले यानी क्योंकि मौला खुतबा दे रहे थे तो खुतबे में मौला ने कहा फरमाया मौला ने कि यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात मिली मेरे जद की विलायत की वजह से। तो उसी वक्त वो उसने कहा लगाया और वो अंधा भी था। तो फिर पहले तो उसको बसारत दी, आँखें दी मौला ने अपने मौजज़े से, और वो सफ़र भी तय करके दिखाया जो मस्जिद नबवी से लेकर उस मकान तक था जहाँ पर वो मछली थी, ताकि उसकी हैयत और उसके कद को और उसके जिस्म को देख सके। पहले तो उसकी हैयत और कद और जिस्म को देख के वो हैरान हो गया कि इतनी बड़ी मछली आ कहाँ से गई। फिर उसने आते ही जब कहा कि अस्सलामु अलैका अय्युहल इमाम साजिद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो फिर इस पर हैरत के और जो थे ना समंदर, उसमें इसको गोते लगने शुरू हो गए। कैसे? ये तो रिवायत में है कि जब इमाम ने हुक्म दिया ना मछलियों को, एक मछली नहीं बल्कि सारे मछली और भी निकल गए, लेकिन ये जो ख़ास मछली थी ये बहुत बड़ी मछली थी। रिवायत में ऐसे अल्फाज हैं, इसके इसम से पुकारा ना, में कुछ जी इसके इसम से पुकारा जी। वो जो इसके इसम से जो वाक़या आप बयान कर रहे हैं ना, वो पुरपुरा मुरमुरा वो दूसरा वाक़या है। अच्छा, हाँ हाँ, वो अलग वाक़या है। ये इसके इसम के साथ था और इसका नाम भी पुकारा मौला ने। कहीं लिखा है अंतीस बिनते कंतीस, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे दिमाग में नहीं आ रहा था, यही नाम था, बिल्कुल ऐसे। ये ना, ये अंतीस बिनते कंतीस के नाम से। देखिए जिनको, हाय हाय क्या कमाल है, जिनको अपने मानने वालों चाहे वो जानवर ही हों, उनकी माँओं और उनके बापों के नामों का पता हो, उनको इमाम कहते हैं। वाह 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 वाह, बेशक। और यमानी साहब को पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ तो क्या नहीं, बस आप ये लगा उनके वालदा का भी पता नहीं है। उस बंदे ने फिर भी शक किया, उस बंदे सैयद उस बंदे ने हक देकर फिर भी शक किया ना। सही है, सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही हुआ है। अब आपको पता चल गया कुरहल मुशरिकून जहाँ भी आएगा। मासूम भाई, ये अंतीस बिन कातीस इनके मछली के वालिद का नाम नहीं जी, उस मछली की माँ का नाम था कंतीस, इसका नाम था अंतीस। अंतीस बिनते कंतीस, ठीक जी हाँ। यानी जो मछलियों के शजरों को, जी मछलियों के शजरों को भी जाने उसे इमाम कहते हैं। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। अली नकील अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या है ना। हारून रशीद जो है शिकार के लिए निकला, तो उसको किसी शख्स ने एक तोहफा दिया, एक मछली लेके आए। तो उसने एक मछली देखी और उसने कहा कि तो मैंने जिंदगी में ये मछली इस तरह की तो पहले देखी ही नहीं। तो उसने मछलियों का शिकार करने वाले जितने लोग थे ना, जो इस मछलियों की नस्लों को जानते थे, सबको बुलाया कि बताओ कि ये कौन से पानी से ये मछली आई है। तो सब लोगों को बुलाया गया जो मछलियों को जानते थे, उनकी नस्लों को जानते थे। तो सब ने कहा कि हम इसका इल्म नहीं रखते कि ये मछली कहाँ से आई और किस पानी की मछली है ये। तो उस वक्त किताबों में ये लिखा हुआ है कि ज़हरी तौर पर इमाम में अली नकील अलैहिस्सलाम की जो ज़हरी एज थी 6 साल की थी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम, इमाम हाजी माशाल्लाह, इमाम तकी अलैहिस्सलाम जी, अच्छा, इमाम तकी अलैहिस्सलाम के दौर के ये वाक़या। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये 6ठे आसमान या 7वें आसमान, अब ये पूरी रवायत मुझे याद नहीं है, कि वहां पर एक समंदर है और उस समंदर में ये मछली है और अल्लाह ने वहां पर सफेद बाज की ड्यूटी लगाई हुई है। तो ये वहां से आई है ये मछली, यहां पर जमीन पर।
ऐसी रवायत है ना मिसिर भाई? सर जी ये वही वाली है ना, ये हारून वाली है ना, अब्बासी जी खलीफा के दौर की। जी, अब्बासी बिल्कुल खलीफा जी के जी दौर। ऐसा ही है। तो कुछ ये इमाम ऐसा है खेल कि रहे थे, इमाम खेल रहे थे, इमाम जी जी बिस्मिल्लाह बोलिए बोलिए। जी जी वो ऐसा ही है कि इमाम खड़े थे तो वो अतफाल में ही कि खड़े थे अल्लाह की हुज्जत का इम्तिहान लेता हूँ, तेरे हाथ जी। में मछली है, तो ये वाला पूरा जुमला था। सबसे पहले तो आके उसने पूछा कि आप क्यों नहीं खेलते, तो क्या जवाब ये दिया वाला, इमाम? तो जी इमाम जी ने कहा जी इमामत जी। खेलती नहीं है। हाय 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 हाय। सबसे पहले इमाम क्या जवाब बात अलैहिस्सलाम ने कहा कि इमामत खेलती है। तो उसने कहा कि बेशक। ये क्या है? तो फिर इमाम ने फरमाया कि बादशाह पहले अपने बाजों को छोड़ते हैं और बाज सातवें आसमान पर जाकर किसी मछली का शिकार लेकर आते हैं और बादशाह मुट्ठी में मछली पकड़ के मुझसे पूछते हैं कि बता मेरे हाथ में क्या है। वाह, हाँ, बेशक ऐसे ही है। जी जी। और मिसम भाई ये जो मालिक ने हदीस बयान की, इस पे बाब इमान सर से बात हो चुकी है, उनको मैं एविडेंस भी साइंटिफिक दे चुका हूँ कि कायनात में करोड़ों ट्रिलियन गैलन्स के हिसाब से पानी का एक समंदर तैर रहा है। वो इतना बड़ा है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम उसके अंदर आ जाता है, हमारा चांद भी सूरज भी उसमें डूब जाए, इतना बड़ा तैर रहा है, पानी है वो सारे का सारा, और एक अजीमुशान कहकशां की तरह वो तैर रहा है, और उसमें अनौ इकसाम किस्म की मछली है, इस जमीन की नहीं है। तो कोई ये ना सोचे कि मालिक ने पता नहीं क्या कह दिया। बाब इमान सर को मैंने सेंड किया हुआ है इसका, ये सारी रिसर्च जो है ये सेंड की हुई है नासा वालों ने। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ जो तो शक पर्दे हैं का ना कोई इसी की बुना पर है। यहाँ तो सैयद शक का कोई जर्रा ही नहीं। वो अगर कह दें कि आसमान से बंदे नाजिल हो रहे हैं तो हम तो ये भी मान जाएंगे। बस बेशक क्या बात। बेशक बेशक। सर वो तो आपकी बात सर आंखों पे सर जी, हमें तो ये बहुत ज्यादा बात है ये भी वाकई। लेकिन वो ये कि सर मर्द- फी जमाना वो मर्द- लोगों का सर जी वो साहब भरना पड़ता है ना। जी सर। साहब जी जी। साइंटिफिक ये माने साबित नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये माने साबित नहीं हो सकता। सर जी साइंटिफिकली साबित होता है, लेकिन वो तैयार नहीं होगा, उसका डीएनए कराना पड़ेगा। वो फिर उसका नाम सामने आएगा कि अहमद बिन इस्माइल बिन साले हसन, उसका नाम निकल आएगा, तो फिर क्या करेंगे? वो डीएनए पे वो तैयार नहीं होगा सर जी कि उसकी लीनेज चेक की जाए। नहीं सर वो जी, फिर इस वो पर दो एक फिर हदीस वो मैंने जंप पढ़ी मार है। जाएगा। वो जंप मार के कहेगा जंप कि मार मैं जाएगा। तो जिस्मानी तो ही नहीं, मैं तो रूहानी बेटा हूँ। रूहानी आखिर में जिली बरूजी पे जाएंगे सर जी, जिली बरूजी के चक्कर में आएंगे। लेकिन बाबे इमाम अगर हमारे इमाम यहाँ पर भी कह देंगे ना तो वो फिर हो जाएगा। शक बेशक। क्या बात। बेशक। क्योंकि आपको मालूम है अलवी भाई ये इतने करीम हैं क्या बात कि क्या एक आयत मैंने सईद पढ़ रखी, और मैं जब भी मैं पढ़ता था मैं समझ नहीं पड़ी कि ये क्यों ऐसी आयत नाजिल हुई। वाइन तस्तगफिर लहुम हत्ता सबईन मर्रा तस्तगफिर लहुम, हाय 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 कि ए नबी अगर आप, ये कैसा मामला अल्लाह ने सिर्फ इनके दुश्मनों को अपने हाथ में रखा है कि उसे पता है कि ये इतने करीम है कि कुछ कर ना दे। क्या बात। सर जी 100% मैंने आयतुल बेइज्जती की ये किसकी सर जी ये बात पढ़ी थी कि वो जुमेरात के दिन जो है सर जी ये इस्तिगासा पढ़ते थे मेरी जान के सबसे बड़े मालिक इमाम हुसैन अलैहि सलाम को, कि बिल्कुल ऐसे ही। आपको वास्ता है अपनी करीमी का और अपने आका की कि ऐसा ना हो कि आप इन कमबख्तों को भी माफ कर दें। हरगिज़ ना बिल्कुल ऐसे कीजिएगा। ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो बिल्कुल सर जी ये बात तो दुरुस्त है। ये एक परसों मैंने एक हदीस सुनी है अबाउट यानी कि पहले आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल का फासला, और उसके अलावा सर जी एक यानी कि ये जो पर्दे हैं इसके दरमियान जो फासला है वो 1000 साल की मुसाफिहत है, और फिर जो पर्दे के अंदर है वो 1000 साल की मुसाफिहत है। जो पानी का जिक्र हुआ, ये जो समंदर, तो सर जी ये भी एक पर्दा है ना, जो कि पत्थर का पर्दा, अंधेरे का पर्दा, पानी का पर्दा, नूर का पर्दा, ऐसा ही है ना सर जी जो मैंने पढ़ा है। इसी के साथ सर जी एक और सवाल ऐड कर लें कि आसमान की बुलंदी कहाँ से शुरू होती है? यार उस दिन भी आपको बताया था कि लफ्ज़ आसमान का जो मानी है ना वो एक नहीं है, जो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खुद बयान किया है, जिसमें आपको बताया था कि लुगत के एतबार से भी आइम्मा की अहादीस मौजूद है कि
बुलंदी जो होती है ना, अरबी में आप ज़ाहिर खुद दोनों अरब कब के अंदर रहते हो, आपको पता होगा, समा समूह से है, उस समूह बुलंदी को कहा जाता है। जी सर जी। तो ये आला दर्जात की बात है, ठीक है, आला मनसब की बात है। दूसरे मकाम पर अहादीस आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें तो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में समा के साथ पुकारा गया है। मैं बहुत सी अहादीस आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए, मैं थोड़ी सी से ठीक हो जाए। ये सारी अहादीस मैंने निशान लगाए हुए हैं, मैं आपको ये सारी अहादीस दिखाऊंगा कि वो कौन कौन सी आयत है जिसके अंदर वो लफ्ज़ आया है और उसकी तफसीर आइम्मा ने रसूलुल्लाह से की है। और तीसरा मानी जो अभी मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं, वो है किसी चीज के मंजिल के तयन के फासले को जाहिर करना। अब मिसाल के तौर पर एक है मादी चीज से मुराद, मासूम माइक ओपन करो। जी बिस्मिल्लाह सर जी। फर्ज करें कि आपके पास 5 किलो चावल है जी। तो ये जो 5 किलो का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है? सर जी ये तो आपने उसके हुजम के मुतल्लिक बताया ना कि इतना हुजम है उसका, वजन के मुतल्लिक उसका वजन जो है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब जब आप पानी को नापते हो तो वहां क्या करते हो? सर जी पानी को नापने के लिए लीटर्स इस्तेमाल होते हैं। लीटर्स इस्तेमाल होते हैं। तो पता चला कि मीज़ान बदल गया है, हाँ जी। यानी कि जहां मादी चीज होती है उसकी पैमाइश का तरीका और है, जी और जहां मादी चीज नहीं होती वहां उसकी पैमाइश का तरीका और होगा। बिल्कुल सर जी। तो पता चला कि अब फर्ज करें कि आप मादी चीज को छोड़ दें, अभी जमीन और आसमान की आप बात कर रहे हैं, तो आप जमीन, आपके पास बेस है ना, हाँ जी। जिस जमीन पर आप खड़े हुए हैं, जी और आपसे कोई बंदा पूछे कि आपके कद की इब्तिदा कहां से शुरू हुई है, तो मैं सर जी ज़मीन लूँगा। जज़ाकल्लाह। तो आपने नापने का सिस्टम कहां से शुरू किया? जहां ज़मीन खड़े से। हैं। जी जी बिल्कुल। तो जहां ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो खला है, खला से तो शुरू नहीं करेंगे, नहीं। यानी जो वजूद जिस पर आप मौजूद है वहां से आपने शुरू किया है। ये फासले की बुनियाद पर है। बात समझ आ गई है? समझ यानी कि जहाँ से मेरी इब्तदा हो रही है ज़मीन से, यानी कि मेरी लंबाई की इब्तदा हो रही है, और जहाँ तक इंतहा है, जहाँ मुकम्मल हो रही है, ये फासला है मेरा। नहीं, ये समझाने के लिए मिसाल दी है कि एक मादी चीज है, एक गैर मादी चीज है। मिसाल के तौर पर आप खला में खड़े होके उसका नाप करेंगे तो आप नाप नहीं, यानी किसी एक मंजिल को दूसरे मकाम तक पहुंचने के फासले को जाहिर करेंगे ना। हाँ जी बिल्कुल सर जी। फर्ज करें कि रनवे से जहाज उड़ा, हाँ जी। फासला है ना। खला में आ गया, खला में जाके उसने आसमानों की बुलंदी नहीं बताई, बल्कि जहां वो जहाज सफर कर रहा है उसने 24,000 फुट की बुलंदी बता दी कि इस वक्त अभी जहाज 24 फुट की बुलंदी पर है। जी तो क्या अब वहां आसमान होगा? नहीं, सर जी ये तो समझने की कोशिश हम कर यानी रहे कि हैं। आपको जमीन का फासला बता रहा है कि जहां इस वक्त जहाज मौजूद है वो जमीन से ऊपर इस फासले में मौजूद है, 24,000 फुट की बुलंदी पर। अब एक और मिसाल दे देता हूं। जमीन से आप मार्स पर चले गए हैं, मार्स का एक वजूद है या नहीं? हाँ जी सर जी। अब वो जो जमीन से मार्स तक पहुंचने का सफर था, उसको कोई पैमाना आपने नापा ना, उसको कितना फासला बनता है? हाँ जी तो वो जितना भी फासला बना दो चीजों के दरमियान में बना ना। बिल्कुल। तो अब वो जो हदीस है 500 साल वाली या 1000 साल वाली, कि पहले आसमान, मिसाल दे रहा हूं कि पहले जमीन से पहले आसमान तक जो फासला है 1000 साल में तय होता है। तो वो 1000 साल जो है वो हमारी दुनिया के हैं या नूरानी दुनिया के?
جب امام نے مثال تم کو سمجھانے کے لیے دی ہے تو جو کاظمی سید نے اس دن کیلکولیٹ کیا تھا، ان کو پتا ہوگا وہ کتنا تھا، وہ پرندے والا. اور سائنس نے آج وہ چیزیں پروف کی ہے نا کہ وہ انہوں نے الفاظ نہیں بولے، انہوں نے ایگزیکٹ پورا وہ سفر بتایا کتنا بنتا ہے. ٹھیک ہو سر جی، مکمل. جی چاند کے بارے میں بھی اس جیسے طرح امام علیہ السلام جیسے کو کال جناب مولا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کا جو پڑ ہے اس کی وہ پیمائش آپ نے بتائی تھی، اور ایگزیکٹ وہی ہے پیمائش. آج بھی اگر ہم گوگل پہ دیکھتے ہیں نا تو وہ دونوں مقاموں کی ایک پیمائش بنتی ہے بالکل. کان سے گردن کے درمیان 500 سال اگر پرندہ سفر کرے تو وہ سفر طے کرے گا. اس فرشتے کی کانوں سے گلے کی جو درمیان فاصلہ ہے، اس فاصلے کو 500 سال اگر وہ پرندہ پرواز کرے تو اتنا فاصلہ طے کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کوئی چیز ایسی ہے نا جو امام نے بیان کی ہے، جی جس کو فرشتے کا نام دیا ہے. بے شک سر ایسے سر جی یہاں سے ایک اور سوال نکل آئے گا، لیکن ابھی پھر میں وہیں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ جب ہم زمین کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کیا آسمان، اس کو بھی آسمان کا حصہ کہیں گے ہم؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے مان لیا کہ سمو سے ایک ہے نکلا ہے. زمین، دیکھو ایک ہے زمین، ایک ہے خلا، ایک ہے فضا، ایک ہے ہوا. جی آپ خلا کا کیا معنی لیتے ہیں؟ سر جی وہاں تو نہ ہوا ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے سر جی، وہ تو ایک بلینک حصہ ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہے. فضا خلا، اب خلا کا نام لوں تو کیا کہیں گے آپ، کیا ہے؟ خلا تو ہم یہ زمین سے بلند ایسے مقام جہاں ہوا ہے، ہوا ضرور ہے اس کے اندر، خلا کے اندر نہیں، خلا کے اندر سوری، خلا کے اندر ہوا نہیں ہے، فضا کے اندر ہوا ہے بالکل. خلا، فضا اور ہوا. خلا کے اندر کچھ نہیں ہے، فضا کے اندر ہوا موجود ہے. صحیح. یعنی خلا کہتے ہیں کہ جس پر کوئی چیز، مادی چیز جو جس کے اوپر نہ ٹک سکے. ہاں جی بالکل. اچھا، کمرے کے اندر کافی جگہ خالی ہے، خلا ہے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ سر جی اس کا ہم کیا فرش اور چھت کے درمیان جو کمرے کے فرش اور چھت کے درمیان جو جگہ ہے وہ خلا ہے. خلا ہے یعنی کہ ایسی جگہ جس میں کوئی چیز موجود نہیں، مادی چیز جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جہاں خدا کے کوئی مخلوق نہ ہو. ہم کو نظر نہیں آ رہی لیکن وہ موجود ضرور ہے. جنات کے متعلق تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ امام نے کیا حکم. جی ذیشان بسم اللہ. آپ سید یہ کمپلیٹ کریں، مجھے ایک سوال ہوا تھا مگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ بات کریں پھر انشاءاللہ میں پوچھوں. جی بسم اللہ، بات کریں. سر جی یہ فاصلہ کہاں سے شروع، مجھے معاف کیجیے عادل بھائی، یہ فاصلہ کہاں سے شروع ہوگا یہ بھی تو بتائیں نا سر جی. میں کیسے بتا سکتا ہوں میرے بھائی، میں نے اگر کوئی حدیث میرے پاس ہو یا کوئی آیت ہو تو پھر تو میں بات کر سکتا ہوں. میرے پاس نہ اس وقت کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. اس سے آپ کیا اخذ کرنا چاہتے ہیں معصوم بھائی، اگر پتہ بھی چل جائے ایگزیکٹ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہماری ہوئی تھی سر جی بات ابو غزوہ بھائی سے، ٹھیک ہے، ہم بیٹھے تھے تو ابو غزوہ بھائی کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر یہاں سے ہم فاصلہ لیں گے تو چلو ٹھیک ہے، یہاں سے ہم لے لیے، گراؤنڈ فلور سے لے لیا، ٹھیک ہے. وہ شخص جو پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کا سفر تو وہاں سے شروع ہوگا. ٹھیک، ایک جہاز 25,000 فٹ کی بلندی یا 32,000 یا 50,000 کی بلندی پہ اگر وہ وہاں سے اوپر کی طرف جانا شروع کر دے تو اس کا سفر وہاں سے شروع ہوگا.
एक हदीस तो फिर सुनाता हूँ आपको मासूम। आपने जो अभी अबू गजबा की बात की है ना, इसके ज़ैल में एक शख्स ने ना एक हदीस लेके आया, तो उसने कहा कि यार इमाम की हदीस है कि जिस शख्स के पास इतना सरमाया नहीं कि वो करबला जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सके, तो इमाम अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि मकान की छत पर जाके इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तरफ मुंह करे, तो उसको वही अजर मिलेगा जो एक ज़ायर वहाँ हकीकी जाके ज़ियारत करता है। लेकिन मेरे पास मसला ये है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तो छत के ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ आ रही है मासूम मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर जी, जी सर जी, मैंने भी ये सोचा था। बिल्कुल तो बिल्कुल खुदा बिल्कुल। के बंदो, क्या नाउजुबिल्ला इमाम को नहीं पता था कि बहुत सी छतें ऐसी होंगी जिनके ऊपर ये जा ही नहीं सकते? जी तो इस छत से मुराद क्या है? छत से मुराद छत ही नहीं। तो खुदा के बंदो, किसी जमीन के किसी जगह पे खड़े होके तुम सच्चे दिल से बेशक मासूम की तरफ रुख करके नियत ये करके जियारत करो तो तुम्हारी जियारत होगी। ये नहीं कि उसी मुकाम पर जहाँ छत पर चढ़ना है ही मुश्किल, बंदा चढ़ ही नहीं सकता, तो इमाम आपको हुक्म दे कि तुम वो करो। ऐसा मुमकिन नहीं है। बेशक इससे ये मुराद नहीं हम ले सकते कि किसी बुलंदी पे चले जाएं। वही कह रहा हूँ, जहाँ मुमकिन है। बुलंदी आप अपने शऊर की बुलंदी पे जाए ना। क्या सिर्फ छत, मकान की छत पर ही सिर्फ इमाम की जियारत की तरफ रुख होगा? किसी और जगह पर नहीं हो सकता? बाबे इमाम, इनको मैं एक बात बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। कुरान की आयत है, व बैनना फौककुम सबअन शदादा। इसमें अब सबअन शदादा 7 हैं, सबअन शदादा 7 सख्त हैं। बैननकुम हमारे ऊपर, फौककुम ऊंचाई है, ऊंचे हैं, ऊंचाई है। इसको तर्जमान ने आसमान लिखा है, लेकिन इसमें लफ्ज आसमान नहीं है। फौककुम ऊंचाई है तुम्हारे दरमियान। अल्लाह ताला कह रहा है वजअलना नहार माशा, क्या मैंने तुम्हारे लिए दिन को माश का वक्त नहीं बनाया? और वबैनना फौककुम सबअन शदादा, तो यानी ये ऊंचाई है। अब ऊंचाई को क्या 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 साबित करना चाहते हैं ऊंचाई से? सब बड़ी आपकी ग्रामर की शऊर रूह से की, ना। जैसे बागम सईद ने फरमाया ना, यहाँ मुराद शऊर की बुलंदी है। जी जी बिल्कुल। बाकी आप घर की छत पे भी खड़े हो जाएं और शऊर बुलंद ना हो तो कैसे मुमकिन है कि आप ज़ियारत पढ़ सकते? अलवी साहब, 2 लफ्ज हैं, यकीन आप बड़ी ज़रा आपका शोबा है ये वाला, ग्रामर वाला, तो आप जी बिस्मिल्लाह। इनके लिए और वजाहत कर दें कि एक लफ्ज है अला जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक लफ्ज है फोक। फौक जी अला का जब लफ्ज आता है तो जी इसका मानी भी बुलंदी है या नहीं? बिल्कुल बुलंदी है। लेकिन इसके बावजूद खुदा ने फोक का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। जी जी तो अब फोक और अला में फर्क समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। बड़ा जरूरी है। देखिए, जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई होती है ना, जी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मेरे हाथ में जो किताब थी इस वक्त टेबल पर है। हाँ बिल्कुल जी जी समझ गए। जी जी जज़ाकल्लाह। जी तो अब यानी कि ये 2 ऐसी चीजों की बात हो रही है जिनका राबता एक के साथ दूसरी के साथ हो दूसरी सकता के साथ, बेशक। क्या बात, लेकिन क्या बात। फोक ऐसा लफ्ज है कि जो जी मादी तौर पर वो ज़हरी वजूद नहीं रखता। नहीं रखता। बस मैं भी यही ऐसी समझाने की बुलंदी, कोशिश। जी जी ऐसी बुलंदी फोक के लफ्ज में आएगी। बिल्कुल। और इसके ज़ैल में जो इसका अपोजिट अल्फाज है वो तहतुल सरा है। तहत सिरा, ऐसा ही अलवी साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ यानी कम दर्जे की तरफ, नीचाई की तरफ हाँ जाता है। तहत सिरा, वाह, क्या फोक हमेशा बुलंदी की तरफ जाता है, जिस तरह मेराज ऊपर होती है ऊपर होती है। इस ही तरह फोक है, इसका तलक ऊपर बुलंदी के साथ है फोक का। माशाल्लाह सैयद। तो यहाँ वो जो मानी समा वाला है ना, बुलंदी वाला, वो अलग मानी है। अलग लेकिन मानी। जहाँ बात है मादी चीज की, ज़ाहिरी तौर पर तो हम आसमानों को सिर्फ लफ्ज सुने हुए हैं, 7 आसमान,
बेशक हमने देखे हुए नहीं है कि वो आसमान 7 हैं क्या। सही है, अभी सही है। अभी बैठे बैठे मौला ने इसका जवाब मुझे दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो बात हुई थी कि भाई एक जहाज़ पे बैठा हुआ है और वो वहाँ से सफ़र कर रहा है, एक पहाड़ की चोटी पर है, ठीक है। इससे मुराद ये है कि हमने सफ़र तो ज़मीन से शुरू किया है ना, चाहे आसमान की तरफ जहाज़ में बैठ के हम गए, लेकिन वो जो मैंने सफ़र ज़मीन से शुरू किया और पहाड़ की चोटी पर गया, वो भी तो मेरा सफ़र काउंट होगा ना, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो भी तो मैंने सफ़र किया है ना। इसका देखो इसी मासूम, तरह कुरान की आयत है सूरह हज की, एक सूरह मुआरिज है, एक सूरह हज। अब इस पर गौर करना, इंसानों की बात नहीं हो रही, मलाइका की बात हो रही है कि उस दिन मलाइका जो हैं वो सफ़र करते हैं तो अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल के बराबर है। ये 1000 1000 साल के बाद एक दिन 1000 साल के बराबर है, और दूसरा जो है एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अब इसका क्या करोगे? अब इंसान और मलाइका में तो जमीन और आसमान का फर्क है। बेशक तो मलाइका के लिए ये है कि वो एक दिन में इतना सफर करते हैं कि जो जमीनी 1000 साल के बराबर है। वाह, अच्छा, वो करते कहाँ हैं? सवाल अब आ गया है कि ये तय्यन कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ से कहाँ सफर करते हैं तो पहुंचते हैं तो 1000 साल बनता है। मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान से सऊदीया जाता हूँ या इंग्लैंड आता हूँ या किसी और मुल्क में जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि 8 घंटे की फ़्लाइट है, पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैनचेस्टर के एयरपोर्ट पर 8 घंटे लगेंगे। जी, ये तय्यन हो गया ना, जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया और जहाँ मैंने ख़त्म किया। जी ये मलाइका जो जा रहे हैं ये कहाँ? ज़मीन से तो पता चल गया कि ये ज़मीन से जब वापस जाते हैं तो किस मकाम पर जाते हैं जिस पर पहुंचते हैं तो 1000 साल बनता है? क्या जवाब है? नहीं सैयद इससे मुराद तो यानी एक ऐसा तयन है जिसकी बुलंदी का एक ऐसे बुलंदी है जिसका तयन मुमकिन नहीं है। मुमकिन ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, खैबर की जंग में मौला मदीने थे, बाज रवायात के मुताबिक मौला मदीने थे, और मदीने से खैबर का कितना फासला है? 80 किलोमीटर के लगभग। अब 80 किलोमीटर जी 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 तकरीबन ऐसा ही है। सर जी, लेकिन सर जी मैंने एक मिसाल भी एक आयत भी पेश की थी कुरान मजीद से कि मैंने ज़मीन के आसमान को सितारों से मुज़य्यन कर दिया। जी सर, 1 मिनट बस। तो अब कोई बंदे जमीन पर देख रहे थे, कुछ वो थे मार्फत वाले जो आसमान पे देख रहे थे। अब ये बताइए, तो वो किस तरह फासले खत्म हुए? जी हाँ, क्या ख्याल है मौसम रैनिटी भाई? बेशक बेशक और सर बहुत आला। अच्छा मौसम भाई, अगर आपका इजाज़त हो तो मैं एक चीज़ सवाल रखना चाहता हूँ, बड़ा अहम सवाल है। बिस्मिल्लाह, रखिए जनाब। सैयद एक सवाल है, मिसम भाई भी हैं यहाँ पे, जी जी। और सवाल अहम इसलिए है कि ये इमाम कायम अलैहिस्सलाम की हुज्जियत और ज़हूर के हवाले से है। सैयद, जैसे कि इमाम अलैहिस्सलाम की जो इस दौर में, मौजूदा दौर में जो उनकी हुज्जियत है, कि आज जो वो हुज्जत खुदा हैं, तो उनकी जो हुज्जत जैसी आज है वैसी ही ज़हूर के बाद होगी। देखिए, मैंने आपको बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात की थी कि खुदा की हुज्जतों ने हमको जो कानून खुद दिया है ना, उस कानून पर आप अमल करेंगे तो आप मुजरम नहीं, और अगर आपने अपनी मर्जी से कानून बनाया तो फिर आप खुद भी मरेंगे, दूसरे को भी मारेंगे। और खुदा की हुज्जतों ने, मैं मिसाल के तौर पर आपको वाकया पूरा सुना देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अगर तो
किसी झूठे ने कोई दावा करना ही नहीं। समझ आ रही है? कोई झूठा भी दावा करने वाला नहीं, तो फिर किसी दावादार से दलील मांगना हराम है। पॉइंट दोबारा नोट कर लें कि जब किसी हुज्जत के मुतल्लिक कोई झूठा दावा करने वाला नहीं, तो झूठा दावा करने वाला है ही नहीं, तो किसी से दलील तलब करना हराम है। और अगर झूठा दावा करने वाला मौजूद है, एक सच्चा है एक झूठा है, तो अब उस झूठे की बुनियाद पर अगर आप सच्चे से भी दलील तलब करेंगे ना, तो आप मुजरम नहीं। क्यों? कि झूठा और सच्चा दो हैं और हमको पहचान नहीं कि इन दोनों में सच्चा कौन सा है। अगर फकत सच्चा ही होता, झूठा ना होता, तो दलील मांगना हराम था। पॉइंट समझ आ गया? ठीक, बेहतरीन। तो हुज्जत ने फरमाया कि ये कानून तुमको क्यों हक दिया गया है? क्योंकि हम तुमको खुद बता रहे हैं कि बहुत से झूठे दावा करने वाले झूठा दावा करेंगे। तो अब झूठे को झूठा साबित करने के लिए दलील तलब करना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। तो पता चला झूठे को झूठा साबित करने के लिए और सच्चे की सदाकत को ज़ाहिर करने के लिए दलील का तलब करना ऐन दीन खुदा है। बेशक। अब हुज्जत के वैसी ही हुज्जत होगी? भाई नहीं, हुज्जत जो है अपनी हुज्जत तो वो हकीकी हुज्जत तो वही रहेगी, लेकिन अपने दलाइल को लोगों पर जाहिर करेगी। समझ आ रही है? जी, यानी हुज्जत हुज्जत ही है। उन पर जाहिर करेगी जिनके लिए, जैसे कि दौरे गैबत में उनकी जो हुज्जत है रैयत के ऊपर, तो ज़हूर के बाद भी तो हुज्जत वैसे ही रहेगी, या उसमें कोई इजाफा तो नहीं होगा? हुज्जत तो जैसे दौरे गैबत में वैसे ही ज़हूर के बाद भी होगी। लफ्ज़ हुज्जत में तो फर्क नहीं है, लेकिन हुज्जत के पास जो तसर्रुफ है उसमें फर्क है ना। यानी अब उनकी तसर्रुफ गैब है और फिर तसर्रुफ ज़हूर करेगा। चल मैं एक छोटी सी और मिसाल दे देता हूं, आसान हो जाएगा। नबी, रसूल और इमाम क्या लफ्ज़ हुज्जत के ज़ैल में तीनों हैं या नहीं? बेशक है। क्या तसर्रुफ के एतबार पर तीनों एक जैसे हैं? नहीं। तो पता क्या चला कि लफ्जी एतबार पर जो हुज्जत, तुम कभी इस लफ्ज बार बार लफ्ज हुज्जत कह रहे हो, ये लफ्ज के एतबार पर तो एक जैसा ही है। ज़हूर होगा तब भी, ज़हूर ना हो तब भी। लेकिन तसर्रुफ के मानी में जब ज़हूर होगा तो तसर्रुफ एक वाज़िह दलील बन जाएगी। या कुछ और सवाल कर रहे हो? सवाल यही है सैयद, बिल्कुल अभी आप यही सवाल है। सवाल यही है कि जो उनकी हुज्जत, जो उनका मुकाम, जो उनका तसर्रुफ हम गैबत में मानते हैं, वैसा ही तसर्रुफ ज़हूर के बाद होगा, वैसे ही हुज्जत रैयत के ऊपर ज़हूर के बाद होगी, जैसे अभी गैबत में है। जैसे अभी गैबत में है। नहीं, जो हकीकी मोमन है उनको तो किसी दलील की जरूरत नहीं रहेगी ना। वाह, यानी ये ज़हूर का जो असर है ये उनके लिए होगा जो शक करते हैं। मैंने उस दिन जो हदीस इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की आपको सुनाई थी कि जब अबू बसीर ने सवाल किया कि मौला ये बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इतनी तवील गैबत होगी और इतनी इतनी मुश्किलात से मोमिन गुजरेंगी, तो मौला के कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इस गैबत से क्या मोमिन के ईमान में फ़र्क आएगा? वाह। तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह आदल ही नहीं रहता कि कायम की गैबत करने से मोमन के ईमान में फ़र्क आए, तो अल्लाह एक लम्हा भी अपनी हुज्जत को गैबत में ना रखता कि जिससे मोमन के ईमान में नुकसान आए। वो मोमिन को नुकसान देना पसंद नहीं करता, फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। अल्लाह अकबर। ये सवाल का ये है सवाल सैयद। अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह, क्या बात है। यानी इसका मतलब ये सैयद, ये ज़हूर जो है ना, ये शक वालों के लिए। बार बार यही तो आपको बता रहा हूं, क्योंकि हुज्जियत में तो फर्क नहीं आ रहा, ना गैबत में ना ज़हूर के बाद। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सामने एक मिसाल रखता हूं, ठीक है जी सैयद। कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
फर्ज करो 10 लोग हैं, उन 10 लोगों में से 2 लोगों ने एक हस्ती को बगैर दावे के पहचान लिया वाह और 8 लोगों ने दलील तलब की ज़हूर के बाद भी। अल्लाह अकबर। तो बोलो इन दोनों में अफजल कौन है? जिसने बगैर दलील के पहचाने, जिसने ना बगैर दिल दलील के मांगी ना दावा देखा। ओह अल्लाह अकबर। क्या बहुत बात है, क्या मुकम्मल बात है। गैब पे ईमान। उसने मुकम्मल गैबत से ही पहचान लिया। अल्लाह अकबर। तो इम्तिहान क्या है कि बगैर दावे के पहचानना मोमन की दलील बनेगी। ओहो ज़हूर पे तो सब पहचानेंगे। उस वक्त तो सारे पहचान जाएंगे। ये है मोमिनीन की फजीलत का असल राज कि उन पर दलील कायम की जाए, उन लोगों पर के मोमिनीन की फजीलत क्यों इनको मिली है। ओहो लेकिन सर फिर जब इमाम अलैहिस्सलाम यानी कि मोमिनीन भटकेंगे नहीं, तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम का ये फरमान कि फिर जल्दी घरों से निकलो जब ज़हूर हो जाए, तो दज्जाल से फिर क्यों इमाम अलैहिस्सलाम लोगों को ये तवज्जो दिला रहे हैं कि आप लोग फिर घरों से जल्दी निकलना। मतलब ये यकीन तो अपनी जगह पर पुख्ता है। और तुम दो अब हिस्सों भाई को उन्होंने मिक्स सैयद ने कर भी देते हो ना। अभी सैयद ने कितना वाज़े किया है कि ज़हूर इमाम की जो हुज्जत जो जब ज़हूर होगा ना, तो उनकी हुज्जत और उनका तसर्रुफ ज़ाहिर होगा, तो वो जो गैब में ईमान रखते हैं ना, उनके ईमान में कमी या इजाफा नहीं होगा। ये वो लोग जो शक करते थे, ये बहुत क्लियर कर दिया सैयद ने, बहुत क्लियर कर दिया। बिल्कुल सर, मैं क्लियर हो गया इस बात पर। अब मैं ये ज़हूर नहीं कह किसके रहा, लिए है? मेरा सवाल और है सर जी। मेरा सवाल अबाउट इसी बुनियाद पर है कि फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने जब मेरा यकीन है अब इमाम का ज़हूर हो गया एग्जाम्पल, तो अब इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर मैं निकल रहा हूँ कि निकलो जल्दी अपने घरों से, तो मोमिनीन के दिल में तो वैसी शक पड़ना ही नहीं है, तो फिर ये किसके लिए? चले अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। रियलिटी ये बताओ कि अभी एक आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती है। जी सर। पूरा नक्शा बनाओ, ठीक है, ताकि सुनने वालों के बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाए। नक्शा ये बनाओ कि मक्का है, काबा है, काबे की दीवार है, दीवार के साथ कोई हस्ती है, वो ऐलान कर रही है कि मेरा ज़हूर हो गया है। सुभान अल्लाह। और उस वक्त सबसे पहले जो पहुंचते हैं ना, वो 313 अफराद पहुंचते हैं। वाह। अब इसको अलग कर दो, ठीक है, पूरा नक्शा बना के रखो और इन 313 को अलग कर दो। अब मुझे ये बताओ, वो जो निदा आई है काबे से, ये निदा मुसलसल रहेगी या किसी खास वक्त के लिए थी ये निदा? ये पहला सवाल है। वाह। आगे मैं बात को लेके चलूंगा, पहले मुझे साथ जवाब दो। ये निदा मुसलसल रहेगी या बस कुछ देर के लिए आएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी? एक ही वक्त के लिए होनी चाहिए। सही। हाँ जी, खास वक्त के लिए होनी चाहिए। अब इस पर रुकना। जी बिस्मिल्लाह, अलवी साहब बिस्मिल्लाह। ये खास वक्त के लिए भी नहीं, ये आएगी सदा, और जब उन कानों पे जिस कानों पे अमाम किया सदा चली आएगी, और उसके बाद बार बार नहीं आएगी सदा। जज़ाकल्लाह मालिक हुसैन बादशाह, आप तमाम को सलामत रखें। अब इस नुक्ते से आपने एक सफर करना है। अब सब कायम हो गए इस बात पर कि ये निदा बार बार नहीं आएगी, एक बार ही आएगी और हर इंसान तक पहुंचेगी। जिस जबान को वो जानता है या बोलता है, उस ही जबान में उस तक मुंतकिल होगी। बेशक। उसके बाद दोबारा बार बार ये निदा नहीं होगी। अब फर्ज करें कि आपने जैसे ही निदा सुनी, आपने दौड़ना शुरू कर दिया। अब वहां निदा तो खत्म हो गई थी जिसने निदा दी थी। अब उस मकाम पर बहुत से लोग जमा हैं। अब बताओ आपको कैसे पता चलेगा कि इन 20 या 100 या 50 लोगों में निदा देने वाला कौन था? क्योंकि वो दीवार के साथ जो खड़ा होगा वही होगा। तो दीवार के साथ तो 100 बंदा खड़ा होगा, तो 100 के 100 हो जाएगा वो।
नहीं नहीं सर रियलिटी जी, जो काबे की दीवार के नजदीक। देख लो हालत। गजबा क्या वहाँ इमाम अकेले होंगे या दूसरे लोग भी खड़े होंगे? क्या बात और कर भी रहे खड़े हो? होंगे ओ लेकिन भाई, इमाम अभी तो के। तुम लोगों ने सुना कि तुम लोगों से पहले 313 मौजूद होंगे, तो जी सर जी, बिल्कुल मौजूद होंगे। तो क्या सर जी, फकत काबे के अंदर 313 और इमाम ही मौजूद होंगे और लोग नहीं होंगे? और भी बहुत होंगे। तो ये सोचो कि क्या इमाम जब तक तुम वहां पहुंचते नहीं वहां टेक लगा के खड़े रहेंगे काबे की दीवार से? नहीं सर तुम्हारी जी, चेहरा भी कि तो अबू दिखाया गजबा जा अभी रहा है। लेट हो गया है तो मैंने दीवार के साथ टेक ना लगाई तो वो मुझे पहचान नहीं सकेगा। क्या होगी ये तो हमें समझ नहीं आ रही ना, बिल्कुल चेहरा भी भी समझ तो नहीं अबू आ रही। गजबा दिखाया जा रहा है ना यार, वो क्यों भूल रहे हो? चेहरा नहीं दिखाया जा रहा हमें। अबू ये गजबा बिल्कुल भाई, समझ नहीं आ रही, मैं बहुत कंफ्यूज चेहरा हूँ। मैं पूछता हूँ, हमें क्या ये हदीस से मिलता है कि नहीं चेहरा हमें दिखाया जाएगा? बताएं मुझे। हाँ, चांद चांद पे चेहरा दिखाया जाएगा। हाँ, तो फिर हमने ये कैसे हम भूल गए कि चेहरा क्यों नहीं, हम पहचान कैसे नहीं सकते फिर? वो चेहरा तो मौला चेहरे से अमीर पहचानेंगे आप। मोमिनीन वसलाम का होगा। मैं सवाल कर रहा हूँ हाँ कि जी। फर्ज करो कि 10 घंटे हो गए हैं अबू गजबा नहीं पहुंचा, तो 10 घंटे क्या इमाम टेक लगा के रखेंगे दीवार के साथ कि अबू गजबा अभी तक नहीं पहुंचा? हाय अल्लाह, इसी लिए तो कंफ्यूज हूँ सर जी कि पहचान कैसी होगी। अब मैं कैसे करूँ इमाम की पहचान? लाजमी है उनके पास मुआवजे होंगे जिसकी बिना पर, लेकिन मैं मुआवजे को तो तलब भी नहीं अगर करूंगा। तुमको पहचान आवाज से भी नहीं हुई, वहां पहुंच भी गए हो फिर भी नहीं पहचाना, तो जाने का कोई फायदा हुआ? ये लश्कर में तो हम आ गए, लेकिन लश्कर की लीडर का भी पता नहीं, क्योंकि जब सब लोग उन एक ही शख्स की तरफ देख के और होंगे वो तो फिर वही खुदा होगा। के बंदो, वो जो ज़हूर है वो हकीकत में सिर्फ 313 के लिए है। जी। अच्छा, सर जी, इसकी नहीं समझ आई। क्या हम पाक इमाम को नहीं देख सकेंगे? माँ सिवाय जो 313 सिर्फ वो देख सकेंगे? अरे नहीं यार, मैंने मिसाल दी है आपको समझाने के लिए, कहा है कि ये बताओ कि अभी फर्ज करो निदा आ गई है जी। अब मैंने सवाल ये किया था कि ये निदा मुसलसल चलती रहेगी, तो आपने कहा कि नहीं, ये की बार आएगी। सर जी, जहूर तक तो इसे चलते रहना चाहिए सर जी। असर के टाइम शैतान भी दिन है ना सदा। सर जी, मैं तो इस निदा को ऐसे लेता हूँ जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस। ठीक है, फिर बाद में सजदे के बाद इबलीस के साथ मुकालमा शुरू हो जाता है। ठीक है, अब मासूम भाई आपने आदम को सजदा किया था? अच्छा माजरत, मेरी कॉल आ गई थी, मैंने नहीं सुना, क्या बोला आप लोगों ने? सर जी, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस निदा को ना ऐसे लेता हूँ जैसे अल्लाह ताला ने मलाइका से फरमाया कि आदम को सजदा करो, सो सब ने तस्लीम किया। ठीक है, और बाद में जो इबलीस है उसने अल्लाह के साथ मुकालमा शुरू कर दिया कि भाई मैं तो सिर्फ तेरी मानूंगा, तुझे सजदा करूँगा, मैं किसी और को नहीं करूँगा। ठीक है, फजर के वक्त ये जो सदा आ रही है